Respected all the attendees present over here in this VCM on the search, seizure and other process under GST Act. And in today's program, we have with us respected Vice Chairman of CIRC, CA Atul Agrawal ji. I welcome you, sir. And today's eminent speaker, CA Manoj Kumar Goyal ji, who is going to deliver his knowledge and expertise in the field of GST Act. Friends, as of now, we are, in general, we are not very much clear about all the provisions under GST Act. Day in and day out, they are going to be changed. Every council meeting, they are coming with various changes. Since its initiation, since its implementation, we have witnessed a lot of changes under GST Act. Whatever, this is the start of an era under GST Act. However, it has passed on 4 years to implement a GST. But still, we are having some teething problems in compliance portal also. Otherwise, there are certain issues related to fake invoicing and other mischievous act of the business communities, rather I can say some mischievous peoples. So they are also coming with various changes, and to cope up with these challenges, they are moving forward to change their provisions and laws also. So we are at CIRC level also very much eager to upgrade knowledge level of our members so that they can perform in their day-to-day practice very well. For this, we have with us respected Manoj Kumar Goyal ji as an expert, and he will deliberate all the issues related to search, seizure and other process of GST. And to start today's session, I would like to invite our Vice Chairman, Sri Atul Agrawal sir, for welcome speech. Atul sir. Thank you very much, Shashi Bhai. Respected Chairman CIRC in absentia, Secretary CA Shashikant Chandrakar ji, respected Speaker of the today's session CA Manoj Kumar Goyal ji, and the attendees who are present here in the today's topic, where we are covering inspection, search, seizure, arrest, and provisional attachment under GST. And as we all know, the age of GST is hardly 4 years. And during this 4 year, n number of notifications have been notified by the Government of India or GST Council. Apart from that, nowadays the department has started search and survey, and especially while there are differences in the returns or maybe in 3B and 2A, the department started survey, the department started searches also, and where they started sending the show cause notices. So now it is the right time where we need to understand what all remedies are available and what all powers are there to the government officers, how they can do the inspection, how they can go for search and seizure. And like as an SSE, what all remedies are available as an SSE to us. That is again a very important aspect. And being a chartered accountant, being an advisor, where we are guiding them, where we are handling their matters, we need to understand what all provisions are there. And in that case, today we have a very learned speaker with us, CA Manoj Kumar Goyal ji. Manoj Kumar Goyal ji is a chartered accountant, and he is an author also. He has written so many articles, and he has written his own book as well on GST. And I'm sure I'm learning from him since last almost 4 years. And whenever, like, even before the implementation of GST, we have taken so many sessions from Manoj Kumar Goyal ji, and whatever I know, little I know about GST, that is because of the knowledge shared by him. So I am really happy that CA Manoj Kumar Goyal ji is with us to give a deliberation, especially on inspection, search, seizure, arrest, and provisional attachment under GST. Before starting his deliberation, I just would like to add 2-3 things, and where I am expecting
a response also from Manojji. Manojji, there are certain issues, especially like the input credit. So my suggestion is if you can take care that part also, that is again more important, because while we talk about input tax credit, then again, if I remember correctly, in GST, in service tax, there was a provision where input availed and utilized. The word was input availed and utilized. But nowadays, while we are talking about the GST, there is a terminology called input availed or utilized. Now, if I talk about input availed, then in that case, as per my understanding, on the basis of plain reading of the provisions which are applicable, which are given in the Act, input availed shall be considered only if there is any adjustment into the output liability. And if there is no adjustment into the output liability, then that should not be considered as input availed. Whatever my understanding is there, and I believe there is a judgment also from Patna High Court, where they are also saying, like, if you have availed input but there was no effect on the output liability, then you are not liable to pay the interest or a penalty. So this is a big question which is being faced by the most of the SSCs. And another issue which I wanted, if you can just touch upon, especially regarding the deposit of GST. Nowadays, what the department is doing, they are going for a survey or a search, and after that they are simply asking for the assessee, okay, if you want to close down the search, you kindly deposit this much money, and they are getting a handsome money deposited by the SSC. And after that, in verification, they found that this money was not liable to be deposited. And then after that, you go for a refund, then at times they start misguiding you that you can't get this refund, or if you get this refund, then this may be a implication, direct or indirect. So these are few issues which I came across during last 6 months, and for that reason, the SSCs are getting show cause notices also. And these notices are talking about the interest. These notices are talking about penalty under section 122, subsection 2, clause A. So these issues are there. If you can cover these issues also, I'm sure and that may be in the interest of the profession and the members as well. And in that case, the members may be in a position to guide their clients also. So with these words, I once again welcome CA Manoj Goyal ji, and I welcome all the attendees who are present here in today's session. And I'm sure your session shall be available on YouTube also after this deliberation. So the members will get the benefit even via YouTube channel also. So without taking much of the time, I once again welcome you all, sir. And I request CA Shashikant Chandrakar ji for further proceedings of the program. Over to CA Shashikant Chandrakar ji. Thank you very much. Thank you, Atul sir, for your kind words. Definitely, your words is very considerable, and I am sure that Manoj ji would going to take up your issues and your suggestions in his session. Now, I would like to invite CA Manoj Kumar Goyal ji for his deliberation. CA Manoj Kumar Goyal. Thank you very much, Shashikant sir. Chairman of the CARC in absentia, Vice Chairman sir, Secretary sir, and the entire management committee of the Central India Regional Council of the Institute of Chartered Accountants of India. At the outset, my very sincere thanks to the entire management committee for providing me this opportunity and inviting me here to deliberate upon the subject. That has always been an honor. And on top of it, the kind of generous introduction that Atulji has given is again appreciable. So I really don't think that I deserve that much appreciation, but any kind of appreciation is always welcome. So thank you, Atulji, for introducing the way you have done. And I will try my level best to keep up to your expectations for whatever 2 hours we are going to discuss on the subject. And certainly I have noted down all the points that you just mentioned in the beginning as preamble. And I'll try and make sure that all the points to the best of my capability are discussed during this session. So with all these words, I would like to take up the formal session or the subject which was decided for the day.
And if I may be allowed to share my screen so that everyone can get benefited with the presentation that I have prepared. Yes, sir, you are allowed. So is the presentation visible, sir? Yes, sir, visible, sir. Okay, thank you so much. So basically, before we actually get into the details of the presentation, I would just like to talk about a little bit about the subject today and the importance of this subject and why I thought that this discussion at this juncture is going to be a value addition for all the members who are participating in this today's webinar. So as the topic goes like inspection, search, seizure, arrest, and provisional attachment, which is missing in the subject line, but the provisional attachment is also covered in the session today. So as Atulji has said, that GST is now 4 years old. And as we all know that in the beginning, it was a honeymoon period. So all the SSCs, all the consultants, and everyone who was associated directly, indirectly with the implementation of GST was kind of initially enjoying the honeymoon period. And when I say honeymoon period, it means that although there were so many ambiguous issues, but still we were able to roll into all those issues because the department was itself not aware about many of the provisions, and they were also learning. There were so many glitches on the website, and there were so many changes coming in day in, day out. So the result was that in the initial years, there were not many confrontations coming in from the department side. So we were the kings, like whatever we were doing in terms of filing the returns, in terms of giving them the responses, or in terms of overall maintaining the books of accounts, including filing the GST audits, it was all like a one-sided flow. But now over the period when the department has got settled down with the provisions, and then they've realized that there are certain gaps, they've realized that there are certain challenges and issues they are facing on a day-to-day basis. So with all this coming into picture, now things have come to a next level where the department has started confrontation, department has started coming in and inspecting the premises, and then they've started doing the search, seizure, even the arrest provisions are getting invoked here and there. And then the provisional attachment of the input tax credit, which is available in your ITC ledger, etc. So that is why I think at this juncture, it becomes very important that now is the time when the assessments have started, when the GST audit has already been started by the department at various levels, when the searches and all kinds of arrests and every provision from that perspective has already started taking place. So with this now, I think the next level of practice has begun. So in the beginning, it was only the compliance which was required, in the sense that we were to know how to file a GSTR 3B, GSTR 1, or other returns for that matter. And in certain cases, maybe a default appeal in case of cancellation of a registration or rejection of a refund. These kind of things we were doing, but now we have to move on a step ahead and talk about these sections which were really not discussed in detail, not talked about in detail in the beginning, because everyone was more interested in knowing as to how the return will be filed and how the GST audit will be conducted. So with this background, I thought that it will be apt and appropriate timing to take up these provisions. And as Atulji and Shashikant sir has already spoken, that we need to know now what is the best practice available, what is that we can advise to our clients, what is that the client should be aware about his rights and also about the obligations as an SSC. So with this in background, let us begin with the subject of the day one by one. So as I have covered that the section number 67 to 72 is basically what I will be trying to cover during the discussion of the day. So first of all, we'll talk about 67. So 67 has two limbs. Preliminarily, 67 is a long section, but it only has two most important subsections. So we will talk about them in detail, and then all the other subsections are
a subset of the main section which is comprising only two subsections 1 and 2. So हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 67 से शुरुआत करेंगे और 67 में we will just talk about कि when is a situation when an officer can visit a particular place of an SSC and what all are the rights of the SSC per se, and what is that the departmental officers who come onto the premises will have as authority. So I will just read this subsection 1 and then both the clauses of subsection 1. Simultaneously, we will also talk about 67 subsection 2, because these two sections are very, very relevant and important. And why I am thrusting upon these two sections is because there are so many practical implications which will come out of these two subsections. So सबसे पहले हम बात करते हैं 67 subsection 1. मैं एक बार आपके साथ पढ़ूंगा इस सेक्शन को, and don't mind because these two sections are really, really important and every word has to be taken very seriously. So that is why we'll read them out, not all the other sections, but these two subsections, and I'm sure that it will definitely add some value to our understanding about these two provisions. So the first one talks about power to inspect. This is the heading or preamble of the section. It says power to inspect, section 67 subsection 1, where the proper officer, not below. Now one thing is very clear कि proper officer has been defined in the act itself. So ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि एक्ट में बहुत जगह पे प्रॉपर ऑफिसर वर्ड यूज किया है और बहुत जगह पे प्रॉपर ऑफिसर वर्ड नहीं यूज किया है, सिर्फ ऑफिसर वर्ड यूज किया है, और इसकी ब्यूटी हमें इसी सेक्शन में दिखाई दे जाएगी. यहाँ क्या बोलता है? वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर हैज रीजंस टू बिलीव. तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. पहली बात, जॉइंट कमिश्नर या उससे सीनियर लेवल का कोई भी ऑफिसर ही ये ऑथराइजेशन इशू कर सकता है. ऑथराइजेशन फॉर इंस्पेक्टिंग अ प्रेमिसेस कौन इशू कर सकता है? एन ऑफिसर हु इज अ रैंक अबव और इक्वल टू द जॉइंट कमिश्नर. तो जॉइंट कमिश्नर से नीचे के लेवल का ऑफिसर ये ऑथराइजेशन इशू नहीं कर सकता, और वो भी तब इशू करेगा जब उसके पास रीजंस टू बिलीव हैं. अब रीजंस टू बिलीव किस चीज के हैं? A taxable person has suppressed any transaction relating to supply of goods or services or both. A क्लॉज में कहता है कि जो टैक्सेबल पर्सन है उसने ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन को सप्रेस किया है जो रिलेट करती है सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज से. अब ये ट्रांजैक्शन दोनों हो सकती हैं, इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है. और द स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, क्या कुछ सप्रेस किया है? या तो सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन को सप्रेस किया है, सर्विसेज से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन को सप्रेस किया है, या स्टॉक इन हैंड को सप्रेस किया है, और क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ हिज एंटाइटलमेंट अंडर दिस एक्ट. जो उसका एंटाइटलमेंट है इस एक्ट में, मतलब एंटाइटलमेंट का मतलब है जितने भी रूल्स हैं जो प्रोहिबिट करते हैं आपको एक पर्टिकुलर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से, उन सब रूल्स में से अगर कहीं पे भी वायलेट किया है आपने और एक्सेसिव इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, तब भी और has indulged in contravention of any of the provisions of this act or the rules made thereunder to evade tax under this act. So जो last lines हैं वो underline करनी बहुत जरूरी है, to evade tax under this act. तो इसको हम ब्रेक करते हैं कि ये पहले क्लॉज में क्या कह रहा है. पहली बात, suppression of a transaction relating to supply of goods or supply of services. Second, suppression of stock in hand. Third, suppression of, or rather excessive claim of input tax credit as was not entitled by that person, or last but not the least, indulged in contravention of any of the provisions. तो ये चार चीजें बोली हैं, इनमें से कोई भी चीज, but the intention of the person concerned should be to evade tax under this act. So it is simply not the case where the ultimate intention of the taxpayer was not to evade tax. Then in that case, an inspection proceeding cannot be initiated against any SSC. So ये reasons to believe होने चाहिए. जो ऑफिसर कंसर्न है वो जॉइंट कमिश्नर से सीनियर लेवल का या जॉइंट कमिश्नर लेवल का ऑफिसर होना चाहिए. उसके रीजंस टू बिलीव जो हैं वो रिकॉर्डेड होने चाहिए. अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्या रीजंस टू बिलीव राइटिंग में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए.
law is silent on this, but practically there have been judgments, and that is how the courts are interpreting this provision also, that there has to be a reason recorded in writing. Now, reason recorded in writing also has two different perspectives. Number one, कि क्या रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड हुआ था, और नंबर टू, अगर हुआ था तो क्या वो सब्सटैंशियल रीजन था। ये जो रीजन यहाँ लिखा हुआ है कि ये इनमें से कोई भी एक बात होनी चाहिए, तो क्या जो नोटिंग की गई थी उनमें से कोई भी एक बात एमिनेट होके आ रही है या नहीं आ रही है, ये सेकेंडरी लेवल का पॉइंट है। तो मेरी जितनी लिमिटेड नॉलेज है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जितने भी कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं, उसमें जनरली कोर्ट्स इस बात को बिल्कुल ध्यान में नहीं दे रहे हैं कि ये जो सफिशिएंसी ऑफ मटेरियल है वो था या नहीं था। मतलब जो नोट बनाया गया, जहां रीजंस टू बिलीव लिखे गए, वो कितने सफिशिएंट थे, ये कहीं कोई भी कोर्ट अभी तक उसको एग्जामिन नहीं कर रही है। बट एट द सेम टाइम दे आर एग्जामिनिंग एटलीस्ट कि ये रीजंस टू बिलीव लिखे हुए थे या नहीं थे। मतलब ये इंस्ट्रक्शन इशू करने से पहले रिटन रीजंस फाइल पे थे या नहीं थे। अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रीजंस जो हैं वो आपको कम्युनिकेट नहीं होते। As an SSC, it is not my right to ask the department to provide us as to what are the reasons for which they have been instructed to come to the premises and inspect it. ये चीजें हम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के थ्रू पता कर सकते हैं, और वो भी कोर्ट शायद आपको बताएगा नहीं रीजंस, बट कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई करेगा बंद लिफाफे में ये डिटेल्स मंगा के। इट विल श्योरली कन्विंस इटसेल्फ कि ये एक रीजनेबल इंस्पेक्शन था या नहीं था। बट बावजूद इसके ये जानना बहुत जरूरी है कि रीजंस टू बिलीव इन राइटिंग कमिश्नर की अप्रूवल से होने चाहिए, और वो सब्सटैंशिएट करने चाहिए इनमें से किसी भी एक पॉइंट को। तो अंडरलाइन क्या है? अंडरलाइन इज कि एज लॉन्ग एज योर इंटेंशन वाज नॉट टू इवेड टैक्स, all the instructions pertaining to inspection of a particular premises are not reasonable. They cannot be defended by the department. अब बी क्लॉज में आ जाते हैं। बी में कहता है एनी पर्सन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और एन ऑनर और ऑपरेटर ऑफ अ वेयरहाउस और अ गोडाउन और एनी अदर प्लेस is keeping goods which have escaped payment of tax or has kept his accounts of goods in such a manner as is likely to cause evasion of tax payable under this act. तो ये जो सेकंड क्लॉज है, जो बी क्लॉज है, ये उन दो सिचुएशंस के लिए है जहां आप खुद टैक्स पेयर नहीं हैं एज फार एज द गुड्स आर कंसर्न, जिसके बारे में बात हो रही है। तो कुछ पर्टिकुलर गुड्स को अगर एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है, एक ट्रांसपोर्टर है, उसने अपने पोजीशन में रखा हुआ है और वो गुड्स के ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ या टैक्स इवेड हो गया है या लाइकली है कि टैक्स इवेड हो जाएगा, तो उस ट्रांसपोर्टर के प्रेमिसेस पे भी इंस्पेक्शन हो सकती है जिसने ऐसे गुड्स रखे हुए हैं जिनके ऊपर टैक्स इवेड या तो हो चुका है या होने के चांसेस हैं। सिमिलरली एक वेयरहाउस ऑपरेटर के केस में भी सेम चीज हो सकती है। इन केस ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ अ वेयरहाउस और अ गोडाउन और एनी अदर प्लेस जहां पे कि ऐसे गुड्स रखे गए हैं जहां उनका टैक्स एस्केप हो गया है या लाइकली चांसेस हैं कि टैक्स एस्केप हो सकता है, इन दो सिचुएशंस में आपके पास डिपार्टमेंट के पास राइट आ जाता है इंस्पेक्शन का। तो क्या होगा? ही मे ऑथराइज इन राइटिंग any other officer of the central tax to inspect any place of business of the taxable person or the persons engaged in the business of transporting of goods or the owner or operator of the warehouse or godown or any other place. तो उनके पास राइट क्या आ जाता है? एक ऐसा ऑथराइजेशन इशू करने का, एक ऐसा नोटिस इशू करने का कि कोई भी ऑफिसर जो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसको ऑथराइज किया जा सकता है बाय वे ऑफ गिविंग हिम अ नोटिस अंडर सेक्शन 67(1) which the person will carry whenever he comes to your premises for inspection. तो पहला सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 कहां अप्लाई होता है? ऊपर के दो क्लॉजेस में। पहली बात, आपने कोई ट्रांजैक्शन को सप्रेस किया हो, दूसरा आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा क्लेम कर लिया हो, या आपने अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस किसी भी एक्ट के प्रोविजन को वायलेट किया हो जिससे अल्टीमेटली टैक्स इवेड हो रहा हो, और या फिर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं और आप ऐसी गुड्स रखते हैं जिनके ऊपर टैक्स इवेड हो गया है, या आप एक गोडाउन ऑपरेटर हैं, वेयरहाउस ऑपरेटर हैं जो ऐसी गुड्स रखते हैं जिनके ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ है। इन ऑल दोज सर्कमस्टेंसेस notice for inspection can be issued.
इसके बाद सेक्शन 67 सबसेक्शन 2, तो जैसा मैंने कहा था कि दो ही ऐसे सबसेक्शन हैं जिसपे हम काफी टाइम लगा के इसको डिस्कस करेंगे. So the second one is where the proper officer not below the rank of joint commissioner, again same है, joint commissioner level का officer ही 67(1) में authorize कर सकता है, 67(2) में भी joint commissioner level का officer ही authorize कर सकता है, either pursuant to an inspection carried out under subsection 1. मतलब पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि 67(1) में एक ऑफिसर ने ऑथराइज किया एक जॉइंट कमिश्नर ने अपने असिस्टेंट को कि जाइए और इस प्रेमिसेस पे इंस्पेक्ट कीजिए. ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन दे फाइंड सम मटेरियल. मटेरियल क्या है? सो दैट द ऑफिसर कंसर्न्ड गेट्स रीजंस टू बिलीव दैट एनी गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन और एनी डॉक्यूमेंट्स और बुक्स और थिंग्स which in his opinion shall be useful for or relevant to any proceedings under this act are secreted at any place, he may authorize in writing any other officer of central tax to search and seize or may himself search and seize such goods, documents or books or things. ये सेकेंडरी चीज है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट के लिए हमें समझनी है कि जनरली जब इंस्पेक्शन होती है तो 67(1) में इंस्पेक्शन होती है. जब आपके पास नोटिस लेके कोई भी ऑफिसर आएगा तो उसके पास ऑथराइजेशन होगा 67(1) का. 67(1) में आपकी प्रेमिसेस में सिर्फ इंस्पेक्शन हो सकता है, सर्च और सीजर नहीं हो सकता. सर्च का मतलब आपकी अलमारी खोल के एक एक डॉक्यूमेंट को बाहर निकालना, आपके गोडाउन के अंदर जाके एक एक माल को बाहर निकालना, ये सारी चीजें सर्च और सीजर का पार्ट है. सिंपली इंस्पेक्शन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिव्यू करना, आपसे बहुत सारे सवाल पूछना, आपका ट्रायल बैलेंस लेना, पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेना, this kind of an activity will be covered under inspection. But search and seizure is a secondary activity and we all must get educated and educate our clients also कि 67(1) का जब भी कोई आपके पास authorization लेके आता है, so there is no need for you to give him excessive access on all the goods including your books of accounts and whatever items you have stored somewhere in your almirahs etc. That is not something for which they have been authorized. But अगर 67(1) में आपके पास ऑथराइजेशन आया है, इंस्पेक्शन वो आपसे बातचीत करेंगे, आपसे आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो कि हर जगह अवेलेबल होते हैं, आप डिपार्टमेंट को देते हो, 3D रिटर्न्स मांग सकते हैं, GSTR 1 मांग सकते हैं, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग सकते हैं, आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं. बट किसी भी सूरत में वो इंट्रिगिंग काम नहीं कर सकते unless they have an authorization under section 67(2). तो पहली लर्निंग हमारी ये कि 67(2) का ऑथराइजेशन है या नहीं है, ये हम सबको पता होना चाहिए बिफोर वी एडवाइज आवर क्लाइंट, और इवन द क्लाइंट हैज टू नो कि अगर 67(1) है तो वो बैठ के बात कर सकते हैं, आपसे कुछ पेपर मांग सकते हैं, बट दे कैन नॉट गो देमसेल्व्स एंड स्टार्ट फाइंडिंग थिंग्स. Provided that where it is not practicable to seize any such goods, the proper officer or any officer authorized by him may serve on the owner or the custodian of the goods an order that he shall not remove, part with or otherwise deal with the goods except with the previous permission of the such officer. ये एक सेकेंडरी लेवल का प्रोविजन है जो कहता है कि अगर कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनको सीज करना है, 67(2) का ऑथराइजेशन भी है, लेकिन समहाउ उसमें दो तरीके हो सकते हैं. एक तो ये कि प्रॉपर ऑफिसर जो है वो खुद एसएससी को या क्लाइंट को ही बोलेगा कि भैया ये गुड्स जो हैं वो आप यहाँ से नहीं हटाओगे और किसी भी तरह से इनमें कोई डीलिंग इंक्लूडिंग सेल, परचेज एटसेट्रा नहीं करोगे. दूसरा प्रोविजन कहता है फर्दर दैट द डॉक्यूमेंट्स और बुक्स और थिंग्स सो सीज्ड शैल बी रिटेन्ड बाय सच ऑफिसर ओनली फॉर सो लॉन्ग एज मे बी नेसेसरी फॉर देयर एग्जामिनेशन एंड फॉर इंक्वायरी और प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट. तो जितने टाइम के लिए ये इंक्वायरी चलती है उतने टाइम के लिए ही ये गुड्स या डॉक्यूमेंट्स और चीजों को कस्टडी में रखा जा सकता है, जब तक वो इंक्वायरी से रिलेटेड है, उसके बियॉन्ड नहीं रखा जा सकता है. सो ये दिस इज 67(2). तो हमारा मैसेज क्या है? नंबर 1, इवेजन ऑफ टैक्स इज द की पॉइंट. जब तक इवेजन ऑफ टैक्स प्रूव नहीं हो जाता, राइटिंग में रीजंस नहीं हो जाते, तब तक आप 67(1) भी इशू नहीं कर सकते. और इन दोनों ही केसेस में रिटन रीजंस टू बिलीव होने चाहिए. रीजंस उसने लिखे हैं कि कोई भी इवेजन ऑफ टैक्स के पर्पस से अगर आपने ट्रांजैक्शन को सप्रेस किया है, अगर आपने ज्यादा एक्सेसिव आईटीसी क्लेम किया है या कोई भी एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट किया है, तब उन सारी सिचुएशंस में आपके अगेंस्ट 67(1) या फिर 67(2) की कार्रवाई हो सकती है. सो नाउ ऑल द अदर सेक्शंस 67(3), 4, 5 ये 11 तक चलते हैं, बट इनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे. दीज आर प्रोसीजरल सेक्शंस, इनको क्विकली
रैप अप करेंगे सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल। डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटर्न विद इन 30 days। तो ये कहता है सिंपली कि अगर आपने जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाय नहीं किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर 30 दिन के अंदर अंदर वापस करेगा। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हिज नोटिस या ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स जो जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर रिलायंस नहीं रखा गया है वो सारे ऑफिसर 30 दिन के अंदर वापस करेगा। 67(4) में कहा है पावर टू सील और ब्रेक ओपन एनी अलमीरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बॉक्सेस एटसेट्रा। अगर 67(2) का नोटिस है, ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रोविजन दोनों में लिखा हुआ है, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी, क्योंकि पहले वाले में भी 67(1) में तो सिर्फ आपके पास इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। अगर गुड्स को कहीं सीज किया गया है या डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है तो 30 दिन के अंदर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस करना है, अनलेस कि आप उनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं अपने नोटिस के पर्पस से। दूसरा, ऑफिसर जो भी आएगा 67(2) का अगर उसके पास ऑथराइजेशन है तो आपको वो कोई भी अलमारी, कोई भी दरवाजा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बॉक्सेस एटसेट्रा अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे खोल के देने के लिए उसको, तो वो तोड़ भी सकता है, उसके पास राइट है। पर्सन एंटाइटल्ड टू टेक कॉपीज और एक्सट्रैक्ट्स। तो जनरली आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके सीज हो रहे हैं उन सब की कॉपीज लेने के लिए आप ऑथराइज्ड हैं एज एन एसएससी, एज अ क्लाइंट, बट ओनली in case when the officer is not of the opinion that the taking out the copies of these documents will be prejudicially affecting the investigation। तो कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां ऑफिसर आपको इसलिए कॉपी करने नहीं देगा क्योंकि वो ये बिलीव करता है कि आपका कॉपी लेना इस इंक्वायरी को प्रीजुडिशियली अफेक्ट कर सकता है। अदरवाइज आपके पास राइट है कि सारी आइटम्स का आप कॉपीज ले सकते हैं। रिलीज ऑफ गुड्स ऑन प्रोविजनल बेसिस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड विद सिक्योरिटी। तो अगर आप एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और प्लस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी दे सकते हैं, जितने की टैक्स लायबिलिटी बनती है वो अगर आप सिक्योरिटी के फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे बैंक गारंटी दे दिया आपने, तो आप अपनी गुड्स को प्रोविजनल बेसिस पे छुड़वा सकते हैं। ऑफिसर्स ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स इफ नोटिस इज नॉट इशूड विद इन 6 months। अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपको कोई नोटिस इशू नहीं किया जाता है तो ऑफिसर इज बाउंड टू रिटर्न योर गुड्स बैक टू यू, provided that the period of 6 months may on sufficient cause being shown be extended by the proper officer for a further period not exceeding 6 months। टोटल मिला के 1 साल तक का पीरियड मैक्सिमम है, उसके बाद अगर नोटिस नहीं आता तो आपके गुड्स आपको वापस किए ही जाने हैं। डिस्पोजल ऑफ पेरिशेबल और हैजर्डस गुड्स, ये हम सब जानते हैं कि अगर कोई ऐसे आइटम होता है तो ऑफिसर के पास राइट होता है कि वो जो आइटम पेरिशेबल है, हैजर्डस नेचर है, उसको वो चाहे तो बेच सकता है, उससे जो पैसा आएगा वो पहले adjust करेगा towards the liability, and if there is an excessive amount collected then the remaining amount will be given back to the assessee। preparation of inventory of perishable hazardous goods by the proper officer, एक proper inventory report बनेगी before taking any call or decision about the sales or disposal of these goods। provisions of code of criminal procedure applicable to search and seizure। तो जो code of criminal procedure है CRPC, उसके सारे provisions स्पेसिफिकली इन केसेस में लगेंगे जहां पे सर्च और सीजर के का नोटिस है ऑफिसर के पास, तो उसमें खाली एक छोटा मोटा मॉडिफिकेशन है कि मैजिस्ट्रेट की जगह वो वर्ड्स कमिश्नर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सारी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है जब भी कभी सर्च एंड सीजर के एक्ट की प्रोसीडिंग्स होती है। सो ये अगेन इसमें कुछ खास नहीं है, ये वही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में लिखा हुआ है। लास्ट सबसेक्शन है पावर टू सीज अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सो इसमें वो कहता है वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज इवेडेड और इज अटेम्प्टिंग टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स, he may for reasons to be recorded in writing seize the accounts, registers or documents of such person produced before him and shall grant a receipt। अब ये कौन सी बात है? ये है जहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपसे अकाउंट्स या अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे और प्रॉपर ऑफिसर के पास ऐसे रीजंस हैं कि जो भी पर्सन कंसर्न्ड है उसने कोई टैक्स इवेड किया है और या वो ट्राई कर रहा है कुछ टैक्स इवेड करने की, तो उस सिचुएशन में वो ऐसे मंगाए गए सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को भी सीज कर सकता है और एक रसीद देके उसको वापस भेज सकता है। परचेज गुड्स और सर्विसेज टू चेक कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन, ये बड़ा सिंपल प्रोविजन है कि कोई भी ऑफिसर कभी भी ये चेक करने के लिए कि किसी भी दुकान से जो माल बिक रहा है या कोई भी ऑफिस अगर कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो वो सारी बिल्कुल करेक्ट टैक्स कंप्लायंस के साथ हो रही हैं,
तो वो कहीं से भी जाके कोई माल खरीद सकता है, कहीं पे भी जाके कोई सर्विसेज ले सकता है। और जब वो ये रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को कि मैं तो ऑफिसर हूँ और मैंने ये गुड्स सिर्फ आपकी टैक्स कंप्लायंस को चेक करने के लिए खरीदी थी, तो वो गुड्स वापस करके अपना पैसा उससे वापस ले सकता है। एंड द पर्सन कंसर्न्ड और द कस्टमर और द एसएससी विल बी बाउंड टू गिव दैट मनी बैक टू द ऑफिसर। तो अगर मान लीजिए कभी किसी दुकान में एक ऑफिसर आए, वो कोई सामान खरीदे, उसका बिल ले, पैसे भी दे दे और बाद में वो सामान वापस कर दे, तो दुकानदार की पॉलिसी कुछ भी हो कि वो गुड्स वापस लेगा या नहीं लेगा, इस केस में ही इज बाउंड टू टेक बैक द गुड्स एंड गिव द मनी रिटर्न। सो दिस इज अबाउट, मोटा मोटा हमने देखा सेक्शन 67 जो कहता है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। अब हम बात करते हैं 68 की। तो 67 में जो हमने देखा इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, उसी को कहीं ना कहीं एक डिफरेंट फॉर्म में कैरी करता है सेक्शन 68। क्विकली इसको रन थ्रू करेंगे। कहता है पर्सन इन चार्ज टू कैरी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स फॉर गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग अ स्पेसिफाइड अमाउंट, सेक्शन 68(1). अब यहाँ पे देखिए एक मेजर डिफरेंस जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं वो ये है कि 67 में जहां भी सेक्शन स्टार्ट होता है वहां बात करता है कि कम से कम जॉइंट कमिश्नर लेवल का ऑफिसर रीजंस टू बिलीव एंड इंपोर्टेंटली इन राइटिंग होने के बाद ही ऑथराइजेशन मिलता है एक ऑफिसर को किसी भी प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करने का। बट इन केस ऑफ मूविंग व्हीकल, इन केस ऑफ कन्वेंस, इस तरह की कोई ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर रोड पे चलने वाले व्हीकल्स जो कुछ भी गुड्स कैरी करते हैं उनको कभी भी रोक लेते हैं रास्ते में। रीजन यही है, 68(1) से आपके पास पावर आती है, कहता है द गवर्नमेंट में रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू exceeding such amount as may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed। तो हम सब जानते हैं कि रूल 138 में ई-वे बिल से रिलेटेड प्रोविजंस है। तो जब भी कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगी तो दे आर सब्जेक्ट टू इंटरवेंशन एट एनी पॉइंट इन टाइम बाय एनी ऑफ द ऑफिसर्स, बट उनको कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है। डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी वैलिडेटेड। अगेन जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं वो सब वैलिडेट हो जाने चाहिए। प्रॉपर ऑफिसर में इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड गुड्स। नाउ दिस इज व्हाई हम लोग देखते हैं रूटीन में कि जो भी गुड्स आपके रोड पे मूव होते हैं उनमें अक्सर किसी भी लेवल के ऑफिसर्स जो है वो गुड्स को रोक के डॉक्यूमेंट्स को और व्हीकल में जो सामान रखा है उसको आपस में कंपेयर करते हैं। एंड जहां पे भी उनको थोड़ी बहुत बारीक गलती भी निकलती है वहीं पे सीधा वो आपको नोटिस इशू करके इनफैक्ट ऑर्डर्स भी दे देते हैं जहां उनको लगता है कि कुछ ना कुछ टैक्स इवेड हो रहा है। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो सच प्रोटोकॉल विच इज देयर इन सेक्शन 67। तो आपको किसी ऑफिसर को आपके यहाँ आने के लिए, इवन इंस्पेक्शन करने के लिए भी जॉइंट कमिश्नर की परमिशन चाहिए होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। तो ये 68 सबसेक्शन 3 में कहता है where any conveyance referred to in subsection 1 is intercepted by the proper officer at any place, he may require the person in charge of the said conveyance to produce the documents prescribed under the said subsection and devices for verification, and the said person shall be liable to produce the documents and devices and also allow the inspection of the goods। तो यहाँ पे कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी चेकिंग के लिए रास्ते में रोका जा सकता है when you are carrying some goods in any of the vehicles। तो 68 को हम बहुत डिटेल में इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं कि वो ई-वे बिल से रिलेटेड प्रोविजंस में बहुत सेपरेटली अलग से दिया हुआ है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने देख लिया है कि रोड पे कभी भी किसी व्हीकल को रोका जा सकता है, उसके लिए कोई प्रायर ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होता। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होते हैं रूल 138 में दिया हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास ई-वे बिल होना चाहिए, जिनमें जो डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं वो सारे आपकी गाड़ी और गाड़ी में रखे गए सामान के साथ मैच होने चाहिए। अब आते हैं हम जो बहुत ही पिक्यूलियर सेक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन आवर टुडेज डिस्कशन इज अबाउट पावर टू अरेस्ट। और इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल डिस्कशंस भी ले लेंगे साथ साथ, सो दैट इट डज नॉट बिकम अ मोनोलॉग। हम आपस में कुछ इंटरैक्टिव डिस्कशंस भी करेंगे। तो सेक्शन 69 है जो अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजन से डील करती है। ये क्या कहती है? पावर टू अरेस्ट फॉर ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज A to D
ये है सेक्शन 69 सबसेक्शन 1 जो कि पावर टू अरेस्ट की सेक्शन है, और ये किस केस में अरेस्ट करने की बात करते हैं, इसको जरा थोड़ा ध्यान से समझना। ये थोड़ा ट्रिकी है इन टर्म्स ऑफ जिन लोगों ने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ सेक्शन, तो इसलिए इस पे 2 मिनट लगा के समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन का इन्वोकेशन किस लेवल पे हो सकता है। इंपॉर्टेंटली आपके जो ऑफेंसेस हैं वो दिए हुए हैं सेक्शन 132 में। 132 सबसेक्शन 1 में ढेर सारे क्लॉजेस हैं जिनमें अलग अलग तरीके के ऑफेंसेस हैं, दे आर सब्जेक्ट टू पेनल्टीज, और हमें सिर्फ डील करना है उनमें 4 क्लॉजेस। बाकी के जो क्लॉजेस हैं वो अरेस्ट प्रोविजंस के लिए काम नहीं करते। तो जब हम बात करें अरेस्ट के लिए तो हमें अपने आप को A, B, C, D इन 4 क्लॉजेस पे ही रिस्ट्रिक्ट करना है। तो पहली बात तो ये होगी कि ऑफेंस क्या है जिसके लिए आपको जेल हो सकती है। वो 4 ही ऑफेंसेस हो सकते हैं। अब पहले एक बार 69(1) देख लेते हैं क्या कहते हैं। वेयर द कमिश्नर हैज रीजंस टू बिलीव दैट अ पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज A, B, C, D of subsection 1 of 132 which is punishable under clause 1 and 2, clause Roman 1 and Roman 2। इससे पहले रुक जाते हैं। अभी पहला कंडीशन क्या है कि आपकी 132 सबसेक्शन 1 के जो पहले 4 क्लॉजेस हैं, आपने कुछ ऐसा किया हो जो A, B, C, D इन चारों में से कहीं किसी जगह पे फॉल करता है, तभी अरेस्ट के प्रोविजन इन्वोक हो सकते हैं। तो वो क्या क्लॉजेस हैं एक बार देख लेते हैं जरा। नंबर A ये कहता है सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशू ऑफ एनी इनवॉइस इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर विद द इंटेंशन टू इवेड टैक्स। अब ये लास्ट वाले जो वर्ड्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, विद द इंटेंशन टू इवेड टैक्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपने एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, आपका काम है किसी भी टाइप की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी बिल्डिंग में कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का ठेका आपने फ्लोरिंग करने का लिया हुआ है, पेंट करने का लिया हुआ है। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि आप काफी सारा सामान चालान पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसका इनवॉइस नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी गुड्स मूव करी हैं जो चालान पे चली गई हैं, जिनका डायरेक्ट इनवॉइस नहीं है। बहुत बार आप गुड्स को इसलिए मूव करते हैं क्योंकि वो किराए पे देनी है आपको। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में डायरेक्टली कोई इनवॉइस क्रिएट नहीं होता, सिर्फ चालान पे माल चला जाता है। तो जो भी ये कंडीशन है, जो ए क्लॉज है, ये वहां अप्लाई नहीं होता। साफ कहता है कि विद द इंटेंशन टू इवेड टैक्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज ऐसी हैं जिनको सप्लाई कर दिया है और उसका बिल इशू नहीं किया है, और आपका इंटेंशन है कि आप टैक्स पे करना नहीं चाहते इसलिए आपने बिल नहीं दिया है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू कैन बी जेल्ड। नंबर बी इसका बिल्कुल उल्टा है। ये कहता है इश्यूज एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उल्टा, आपने गुड्स या सर्विसेज तो सप्लाई किए ही नहीं लेकिन बिल सप्लाई कर दिया, in violation of the provisions of this act or the rules made thereunder leading to wrongful availment or utilization of input tax credit or refund of tax। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें मैं 2 मिनट सबके साथ लगाना चाहता हूं। ये इसको दोबारा एक बार पढ़ते हैं क्या कहता है। ये कहता है इश्यूज एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट or the rules made thereunder leading to wrongful availment or utilization of input tax credit or refund of tax। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सवाल यह है कि अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसा इनवॉइस बनाया जिसके अगेंस्ट मैंने कोई सप्लाई नहीं दिया, मैंने कोई भी सप्लाई नहीं की बट सिर्फ इनवॉइस रेज कर दिया, लेकिन मेरी सप्लाई से जो इनवॉइस गया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट सामने वाले ने अवेल नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये प्रोविजन लागू होगा? ये कहता है wrongful availment और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं अपने एग्जांपल को और स्पेसिफाई कर देता हूं। मान लीजिए कि आपने जिसको इनवॉइस दिया वो एक पावर जनरेशन कंपनी है, या जिसको इनवॉइस दिया वो एक हॉस्पिटल है, जिसको इनवॉइस दिया वो एक स्कूल है। आपने जीएसटी चार्ज करके एक इनवॉइस रेज किया जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन स्कूल को तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता नहीं है, हॉस्पिटल को तो क्रेडिट मिलता नहीं है, या और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज हैं जिनको जनरली उनकी सप्लाईज के ऊपर आउटपुट नहीं, टैक्स नहीं है, इसलिए उनको इनपुट नहीं मिलता है। तो क्या ये क्लॉज बी ऐसे सिचुएशंस में अप्लाई होगा? दिस इज वन क्वेश्चन दैट वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी गेट इनटू क्वेश्चन आंसर सेशन। थर्ड वो कहता है अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग द इनवॉइस और बिल रेफर्ड टू इन क्लॉज बी और फ्रॉडुलेंटली
avails input tax credit without any invoice or bill. तीसरा क्या रीजन हो सकता है कि आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉडुलेंटली या तो यूज कर लिया है, किसी इनवॉइस पे जिस पे बनता ही नहीं था, ऐसा इनवॉइस जिसमें गुड्स आए ही नहीं, सर्विसेज आई ही नहीं, उसके अगेंस्ट आपने इनपुट क्लेम कर लिया, और या फिर आपके पास कोई बिल है ही नहीं, आपने बिना बिल के ही इनपुट क्लेम कर लिया। इन सारे सिचुएशंस में अल्टीमेटली आपको जेल हो सकती है, प्रोवाइडेड कि आपने ये जो गलत काम किया है उसकी पनिशमेंट क्लॉज नंबर 1 और 2 में जाएगी। ये क्लॉज नंबर 1 और 2 हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले चौथा और आखिरी रीजन क्यों आपको जेल हो सकती है, डी में कहता है कलेक्ट्स एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम्स ड्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने टैक्स को कलेक्ट कर लिया, मींस आपके इनवॉइस पे आपने टैक्स चार्ज किया, कस्टमर से आपने वो क्लेम कर लिया, रिसीव भी कर लिया, लेकिन ड्यू डेट से 3 महीने के अंदर, ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी 3 महीने के अंदर अंदर भी आपने अगर पैसा सरकार को नहीं दिया, then in that case clause D will come into picture and that can also become one of the reasons of getting you behind the bars. So A, B, C, D, पहला आपने गुड्स सप्लाई किए, बिल नहीं दिया, दूसरा आपने बिल दिया लेकिन गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं किए, तीसरा आपने आईटीसी फ्रॉडुलेंटली क्लेम किया, और या फिर आपने आईटीसी बिना बिल के ही क्लेम कर लिया, और चौथा आपने कोई अमाउंट कलेक्ट किया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ जीएसटी लेकिन वो जमा नहीं किया बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डेट इट बिकम्स ड्यू। तो ये चारों रीजंस ऐसे हैं जो आपको जेल में ले जा सकते हैं। अब आती है कि अगर ये चारों चीजों में से कुछ भी आपने कर दिया तो क्या हर सिचुएशन में आपको जेल हो जाएगी? द आंसर इज नो, बिकॉज द सेकेंड वन विच टॉक्स अबाउट कि पनिशेबल अंडर क्लॉज रोमन 1 और रोमन 2 होना चाहिए। तो पनिशेबल अंडर क्लॉज रोमन 1 और रोमन 2 कैसे होता है ये हम देखेंगे, तब समझ में आएगा कि अरेस्ट होने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। शायद हमने इस प्रेजेंटेशन में कहीं आगे लिखा है, बट वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रोमन 1 और रोमन 2 में बेसिकली लिमिट लिखी हुई है फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन। रीजंस हमने पहले देख लिए कि आपने बिल इशू किया बिना माल दिए, माल दिया बिना बिल इशू किए, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया फ्रॉडुलेंटली, और या आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया बट जमा नहीं कराया। इनमें से कुछ भी आपने किया या चारों ही किए थोड़ा थोड़ा करके, तो टोटल वैल्यू अगर वो 5 करोड़ रुपए से एक्सीड कर जाती है तो आपको जेल हो सकती है, और इवन 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम है तब भी जेल हो सकती है। तो जो क्लॉज रोमन 1 है और रोमन 2 है इसमें यही फर्क है, एक जगह पे 5 करोड़ रुपए की वैल्यू है और एक जगह पे 2 करोड़ की वैल्यू है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फाइन लाइन डिफरेंस है। 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपने ऐसा फ्रॉड किया है जिसमें वॉल्यूम 5 करोड़ से ज्यादा हो गया है तो ये एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब है इस केस में कमिश्नर आपको बेल नहीं दे पाएगा। अगर बेल देनी है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा और वहीं से बेल इनिशिएट होती है। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ का जो ऑफेंस होता है वो नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस होता है। उस केस में कमिश्नर हिमसेल्फ, एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट भरवाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा और आपको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तो 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का अगर आपका ऑफेंस है तो वो नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस है। अगर 5 करोड़ से ऊपर का है तो वो नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसीलिए कॉमन पार्लेंस में हम सब देखते हैं कि अरेस्ट का ज्यादातर प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो 5 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम पे ही होती हैं, उससे नीचे के वॉल्यूम पे जनरली डिपार्टमेंट ये टेकअप नहीं करता। तो जहां भी फ्रॉड का अमाउंट या अमाउंट इन्वॉल्व्ड ऑफ नॉट द टैक्स नॉट बीइंग डिपॉजिटेड विद द डिपार्टमेंट इज मोर देन 5 करोड़, इन दोज केसेस ओनली अरेस्ट के प्रोविजंस इफेक्टिवली डिपार्टमेंट इन्वोक करता है। तो हमने ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट देख लिया कि अरेस्ट किस केस में हो सकता है। ऑफिसर, अब इसके बाद इसके एंसिलरी सेक्शंस हैं, इनको क्विकली देखेंगे। ऑफिसर टू इन्फॉर्म ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो जो भी ऑफिसर है जब उसने किसी को अरेस्ट किया तो वो बताएगा कि मैंने आपको क्यों अरेस्ट किया है
और आपको एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाएगा। बेल फॉर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस subject to the provisions of Code of Criminal Procedure where a person is arrested under subsection 1 for any offense specified under subsection 4 of 132. Now 4 और 132 क्या है? ये exactly वही चीज है जहां 2 से 5 करोड़ रुपए के बीच में आपका ऑफेंस है, जो कि नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस है, तो वहां पे आपको बेल वही तुरंत ऑफिसर की तरफ से ही मिल जाएगी। In the case of a non-cognizable and bailable offence, the deputy commissioner or the assistant commissioner shall, for the purpose of releasing an arrested person on bail or otherwise, have the same powers and be subject to the same provisions as an officer in charge of a police station. मतलब अगर आपका ऑफेंस 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का है, तो जो कंसर्न ऑफिसर है, जो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का होगा, उसके पास सेम पावर्स होती हैं जो एक स्टेशन हाउस इंचार्ज के पास होती हैं ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो उस केस में आपको बेल वहीं के वहीं मिल जाएगी। तो ये हमने बात की पावर और प्रोविजंस रिलेटेड टू अरेस्ट। अब नेक्स्ट प्रोविजन पे चलते हैं क्विकली, जो बात करता है पावर टू समन। सो पावर टू समन अंडर सेक्शन 71, ये सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन सेक्शन है मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन में, एंड मे बी आई एम रॉन्ग, पीपल में हैव डिफरेंट व्यूज, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो 4 लाइन या इनफैक्ट 4.25 लाइन का ये जो सेक्शन है, ये अपने आप में इस जीएसटी एक्ट का सबसे खतरनाक और बहुत सारी जगह पे मिसयूज्ड सेक्शन है। कैसे, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, एंड देन आई वुड लव टू लिसन टू योर एक्सपीरियंसेस आल्सो। सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? द प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल हैव द पावर टू समन एनी पर्सन। ये वर्ड्स पे बहुत गौर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि समन इशू करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर खुद ही बहुत है, उसको किसी भी सीनियर ऑफिसर से किसी भी टाइप का ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल हैव द पावर टू समन एनी पर्सन whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in any inquiry in the same manner as provided in the case of a civil court under the provisions of the Code of Civil Procedure 1908, meaning thereby अगर किसी सुपरिंटेंडेंट लेवल के ऑफिसर को ये लगता है कि मुकेश अंबानी की मेरे को यहाँ पे जरूरत है, और लगता है मींस विम्स एंड फैंसी, यहाँ नहीं लिखा he has to have reasons to believe, he has to have reasons to believe recorded in writing, nothing of that sort। बड़ा प्लेन सेक्शन है। ये कहता है अगर ऑफिसर को रात को सपना भी आ गया कि मेरे को कोई ऐसे आदमी को बुलाना है जिससे कोई एविडेंस लेना है, बस सिंपल क्या, he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in any inquiry in the same manner as provided in the case of a civil court under the provisions of the Code of Civil Procedure 1908। बड़ा सिंपल है कि एक ऑफिसर के मन में ये बात आ गई कि मुझे तो मुकेश अंबानी के साथ बैठ के चाय पीनी, एंड दिस इज ऑन द लाइटर साइड। आई डोंट रियली मीन व्हाट आई एम सेइंग, बट एट द सेम टाइम इसका मतलब वही है, इस सेक्शन का मतलब वही है कि एक सुपरिंटेंडेंट लेवल के ऑफिसर को अगर ये समझ में या उसका मन कर गया कि मुझे तो यार मुकेश अंबानी के साथ बैठ के चाय पीनी है, तो वो ये समन करके बुला सकता है। उसके बाद वो उसको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है एज सच। इस सेक्शन में ये नहीं लिखा हुआ है कि उसके पास कोई रीजंस टू बिलीव होने चाहिए, जो हमने देखा सेक्शन 67 में या 68 में। 68 में भी इनफैक्ट नहीं है, जहां पे रास्ते में व्हीकल को रोका जाता है, बट वहां पे फिर भी एक सोलेस ये है कि व्हीकल को जब रोका जाएगा तो वहां कौन होगा, कोई ड्राइवर होगा गाड़ी का या उसके साथ कोई अटेंडेंट होगा। बट ऑफ कोर्स यहाँ जो पावर है वो इतनी बड़ी है, इतनी एग्जॉर्बिटेंट है कि आप किसी को भी बुला सकते हैं। नाउ इंक्वायरी इंक्लूड्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। आपने देखा होगा सेक्शन 70 के जितने भी नोटिस आते हैं उसमें नीचे ये लिखा होता है, एवरी सच इंक्वायरी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड सेक्शन 222 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड लाइन है जो सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 के नोटिस में साफ साफ लिखी जाती है। अब इसका ग्रेविटी समझते हैं कि इससे क्या हो सकता है। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर केस में बहुत बड़ी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम ले लेते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है जिसने कोई बहुत ही छोटा सा में भी 5 लाख रुपए का इनवॉइस लिया जिसमें 90,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो कि डिपार्टमेंट क्लेम करता है कि एक फेक फर्म से आया है या एक नॉन एग्जिस्टेंट फर्म से आया है। तो उसके पास रीजन है आपको समन करने का, सीएफओ को समन करने का। और ये मैंने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है कि जो भी समन दिए जाते हैं वो समन एड्रेस ही किए जाते हैं डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, सीएफओज
or senior most people in the organization. And more to say, ये जितने भी summons हैं, they are technically cannot be represented by an authorized or a legal representative. They have to be complied with by coming or attending the office by the person in whose name this summon has been issued. Technically, अगर एक CFO के नाम पे summon issue हुआ है, तो summon का compliance तभी माना जाएगा जब आप खुद पर्सनली वहां अटेंड करेंगे. प्रैक्टिकली हो सकता है कि ऑफिसर इतना स्ट्रिक्ट व्यू ना ले, वो किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भी एड्रेस कर ले, उसको भी ऑन रिकॉर्ड ले ले. प्रैक्टिकली हो सकता है कि उसको समझ आ जाए कि द पर्सन कंसर्न इज टू सीनियर, तो वो उसको इंसिस्ट अपॉन ना करे. बट द प्रोविजन इन द लॉ is such that a proper officer, even of the rank of a superintendent, can call upon any of the person on the earth wherever he feels that his attendance is necessary. That's it. उसको लगना चाहिए कि इसकी अटेंडेंस जरूरी है, वो आपको बुला सकता है. This is the power of Section 70, and I personally feel that most of the papers of the Government of India GST department are being used to issue notices under Section 70 subsection 1, not notices, summons. मतलब GST में मुझे लगता है उतने नोटिस नहीं आए होंगे जितने समन आए हैं, और हर समन में वही स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, वही स्टैंडर्ड प्रोविजंस होते हैं. So that is why I thought कि ये थोड़ा important section है, so we'll spend some time on this. Now Section 71 subsection 1. Section 70 subsection 1 कहता है any officer under this act authorized by the proper officer not below the rank of a joint commissioner shall have access to any place of business of a registered person to inspect books of accounts, documents, computers, computer programs, computer softwares, whether installed in a computer or otherwise, and such other things as he may require and which may be available at such place for the purpose of carrying out any audit, scrutiny, verification and checks as may be necessary to safeguard the interest of revenue. अब इसमें फर्क क्या है सर? अभी हमने 67 देखा था, पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, एंड देन 69 देखा था, अरेस्ट. तो फिर ये 71(1) की जरूरत क्या है, 71(2) की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है कि यहाँ पे आपके पास में कोई रीजंस टू बिलीव होने की जरूरत नहीं है, कोई इवेजन ऑफ टैक्स का केस नहीं है. ये एक तरीके से एक जनरल पावर है टू गो टू एनी प्रेमिसेस एंड चेक. ऑडिट के लिए भी जा सकते हैं, स्क्रूटनी के लिए जा सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू. बट इस केस में ऑथराइजेशन जो है वो जॉइंट कमिश्नर या उससे अबव लेवल के किसी ऑफिसर से आना चाहिए. बट इस केस में नंबर 1 रीजंस टू बिलीव गायब है, दूसरा इवेजन ऑफ टैक्स गायब है. हमने 67 में देखा था कि वहां पे जब इंस्पेक्शन होती है या सर्च होती है या सीजर होता है, तो वो उस केस में होता है जहां पे इवेजन ऑफ टैक्स इन्वॉल्व हो. यहाँ पे इवेजन ऑफ टैक्स नहीं है, ये जनरल पावर है टू एक्सेस एनी ऑफ द प्रेमिसेस. और यहाँ पे आपको कमिश्नर को ऑथराइज करने से पहले कोई भी रीजंस टू रिकॉर्ड इन राइटिंग नहीं देना होता. तो ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई ऑफिसर 71(1) में ऑथराइजेशन लेके आया है तो वो 67 से बहुत अलग है. वहां वो आपसे ये क्लेम नहीं कर सकता कि आपने कोई टैक्स चुराया है या आपने कुछ गलत काम किया है. वहां वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपसे कुछ आपके डॉक्यूमेंट देखने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए आ सकता है, बट नॉट विद द इंटेंशन टू सर्च और सीज द गुड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स. Submission of records for scrutiny. 71(2). Every person in charge of place referred to in subsection 1 shall on demand make available to the officer authorized under subsection 1 or the audit party deputed by the proper officer or a cost accountant or a chartered accountant nominated under section 66. उसको क्या क्या देना पड़ेगा? Such records as prepared or maintained by the registered person and declared to the proper officer in such manner as may be prescribed. ट्रायल बैलेंस देना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स देना पड़ेगा, पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स फॉर द स्क्रूटनी बाय द ऑफिसर और ऑडिट पार्टी और द चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट विद इन अ पीरियड not exceeding 15 working days from the day when such demand is made or such further period as may be allowed by the said officer or the audit party or the chartered accountant or the cost accountant. तो जो ये सेक्शन है, that is particularly a section which is applicable in general standard situations. 72 में बात करता है ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर. तो ये एक स्पेसिफिक सेक्शन है जिसका
ऐसा एसएससी से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये इस तरह से एप्लीकेबल होती है कि दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी बाउंड हैं in certain cases to assist or give help to GST officers. For example, specified officers to assist GST officers 72(1) में क्या कहता है? All officers of police, railways, customs and other officers engaged in the collection of land revenue, including village officers, officers of state tax and officers of union territory tax, shall assist the proper officer in the implementation of this act. तो ये सारे ऑफिसर्स जहां जहां जरूरत पड़ेगी, चाहे रेलवे वाले हों, पुलिस वाले हों, कस्टम्स वाले हों या अदर ऐसे ऑफिसर्स हों जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते हैं, वो सब इनको असिस्ट करने के लिए बाउंड है एज पर द लॉ. गवर्नमेंट में एम्पावर एनी अदर ऑफिसर. The government may, by notification, empower and require any other class of officers to assist the proper officers in the implementation of this act when called upon to do so by the commissioner. तो सेकंड बात हमने ये कर ली कि एक तो स्टैंडर्ड ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये वाले ऑफिसर हेल्प करेंगे, उसके बियॉन्ड भी कुछ ऑफिसर्स को नोटिफाई किया जा सकता है और वो भी जरूरत पड़ने पे जीएसटी ऑफिसर्स की जहां कहीं जरूरत पड़े वहां पे हेल्प करेंगे. तो अब क्विकली हम देख लेते हैं कि रूल्स क्या हैं. अभी हमने देखा ये सेक्शंस, तो सेक्शंस का जो पिटारा है 67 से लेके 72 तक का, उसको हमने मोटा मोटा क्लोज किया है. अब हम बात करते हैं रूल 139 एंड ऑनवर्ड्स, जो इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर के रूल्स हैं. बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंशियल है नहीं, ज्यादातर चीजें वही हैं जो सेक्शंस में कवर्ड हैं. फिर भी क्विकली देख लेते हैं. वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर हैज रीजंस टू बिलीव दैट अ प्लेस ऑफ बिजनेस और एनी अदर प्लेस इज टू बी विजिटेड फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन और सर्च, or as the case may be seizure in accordance with the provisions of section 67, he shall issue an authorization in form GST INS 01 authorizing any other officer subordinate to him to conduct the inspection or search, or as the case may be seizure of goods, documents, books or things liable to confiscation. ये exactly वही चीजें हैं जो हमने 67 में already cover की हैं. Where any goods, documents, things, books or things are liable for seizure under subsection 2 of section 67, the proper officer or an authorized officer shall make an order of seizure in INS 02. तो प्रोसीजर बताया है कि INS 01 में क्या कर सकते हो, INS 02 में क्या कर सकते हो. That's about. The proper officer or an authorized officer may entrust upon the owner of the or the custodian of goods from whose custody such goods or things are seized the custody of such goods or things for safe upkeep. अगेन आप खुद ही जिसकी गुड्स को आप सीज कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स को सीज कर रहे हो, उसी को बोल रहे हो कि भैया इसका ध्यान रखना, और आप जब तक मैं ना कहूं इनको यहाँ से रिमूव भी नहीं करना, इनको बेचना भी नहीं, किसी तरह से इनमें डील नहीं करना. Where it is not practicable to seize any such goods, the proper officer or the authorized officer may serve on the owner or the custodian of the goods an order of prohibition in form GST INS 03. तो एक ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन होता है. अगेन वो यही कहने के लिए है कि आप इन गुड्स का कोई और इस्तेमाल नहीं करेंगे मेरी परमिशन के बिना. The officer seizing the goods, documents, books or things shall prepare an inventory of such goods or documents or books or things containing inter alia description, quantity, unit, make, mark or model where applicable and get it signed by the person from whom such goods or documents or books or things are seized. तो ये आप सारे डिटेल्स जो ऑफिसर है वो एक इन्वेंट्री के फॉर्म में बनाएंगे. रूल नंबर 140, बॉन्ड एंड सिक्योरिटी फॉर रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स. हमने सेक्शन में भी बात की थी कि अगर आपको प्रोविजनली अपने गुड्स को छुड़वाना है तो आप एक बॉन्ड देंगे और एक सिक्योरिटी अमाउंट फाइल करेंगे. फॉर्म होगा INS 04. एक्सप्लेनेशन में कहता है for the purposes of the rules under the provisions of this chapter, the applicable tax shall include central tax, state tax, central tax and union territory tax as the case may be, and the cess if any payable under the Goods and Services Tax Act. तो ये सारे पैसे आपको जमा कराने पड़ेंगे अगर आपको गुड्स को प्रोविजनली रिलीज कराना है तो. In case the person to whom the goods were released provisionally fails to produce the goods at the appointed date and place indicated by the proper officer, the security shall be encashed and adjusted against the tax, interest and penalty and fine if any payable in respect of such goods. तो अगर आपने गुड्स को प्रोविजनली नहीं कराया तो उस केस में उसको बेच के जो भी पैसे मिलेंगे वो टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिए जाएंगे. Where the goods or things seized are of perishable or hazardous nature, and if the taxable person pays an amount equivalent to the market price of such goods or things or the amount of tax, interest and penalty that is or may become payable by the taxable person, whichever is lower, such goods or as the case may be, things shall be released forthwith. Again INS 05 as it is. तो मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाता because I think these are more or less repeated things जो हम already discuss कर चुके हैं. अब हम थोड़ा सा टाइम इम्पोर्टेंटली लगाएंगे प्रोविजनल अटैचमेंट पे.
and then afterwards we will talk about some practical issues, and then we'll move on to question answers. So provisional attachment to protect revenue in certain cases, ये अगेन एक ऐसी सेक्शन है जिसमें गवर्नमेंट के पास, डिपार्टमेंट के पास काफी सारे पावर्स हैं, और इन पावर्स को कभी कभी सही तरीके से यूज और कभी कभी मिस यूज भी किया जा सकता है. सो वी हैव टू लिटरली अंडरस्टैंड कि हमारे पास एज एन एसएससी, एज अ कंसल्टेंट, क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, और कैसे हम उनको इंश्योर कर सकते हैं कि बियॉन्ड अ पॉइंट कोई भी ऑफिसर ट्रेवल करके एक एसएससी क्लाइंट टैक्स पेयर को हैरेस नहीं कर पाए. So number 1, it says, where after the initiation of any proceeding under chapter 12, chapter 14 or chapter 15, the commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the government revenue, it is necessary so to do. He may by order in writing attach provisionally any property, including bank account belonging to the taxable person or any person specified in subsection 1A of section 122 in such manner as may be prescribed. तो इसी सेक्शन पे 5 मिनट लगाते हैं, क्योंकि बहुत ही बारीकी से समझने वाला है और इसका कहीं सही और कहीं गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है और हम कैसे कॉन्शियस रह सकते हैं अपने टैक्स पेयर्स, अपने क्लाइंट्स एसएससी के लिए. तो इसलिए इस सेक्शन के ऊपर 2 मिनट लगाएंगे. क्या कहता है 83 सबसेक्शन 1, where after the initiation of any proceeding, so first and foremost important thing is कि unless there is the proceeding going on, ये सेक्शन इन्वोक नहीं हो सकता. अंडर चैप्टर 12, 14 एंड 15, तो 12, 14 और 15 इन तीनों चैप्टर्स में मोटा मोटा क्या चीजें आती हैं. ऑडिट भी आता है, असेसमेंट्स भी आते हैं, सेक्शन 73, 74 के नोटिसेस भी आते हैं. बट जहां कहीं भी आपके अगेंस्ट, एसएससी के अगेंस्ट कोई ऐसी प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रही है, सिर्फ वहीं पे ये प्रोविजन आ सकता है. डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सके. सेकेंड, द कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन that for the purpose of protecting the interest of the government revenue, it is necessary so to do. यहाँ पे again reasons to believe कि कहीं बात नहीं है. He may by order in writing attach provisionally. सिंपल सी बात है कि अथॉरिटी कमिश्नर के पास है. कमिश्नर से बिलो रैंक का ऑफिसर अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं दे सकता. बट जहां हमने पहले देखा कि इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर के लिए रीजंस टू बिलीव रिकॉर्ड होने जरूरी हैं, यहाँ पे रीजंस टू बिलीव की कोई बात नहीं है. पहला पॉइंट है कि कोई ना कोई प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट चल रही होनी चाहिए. दूसरा पॉइंट है कि कमिश्नर लेवल का ऑफिसर ही ये ऑर्डर दे सकता है जहां उसको लगता है. राइटिंग में एक ऑर्डर दे सकता है जहां उसको लगता है कि इट इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो वो ऐसा ऑर्डर दे सकता है. क्या क्या अटैच हो सकता है? एनी प्रॉपर्टी, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी, मूविंग, मूवेबल, नॉन मूवेबल, हर टाइप की प्रॉपर्टी इसमें अटैच हो सकती है, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन और एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 122. बड़ा इंपॉर्टेंट है सर. पहले हम बात करते थे कि जो टैक्सेबल पर्सन है, जो एसएससी है, सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, उसी के बैंक अकाउंट अटैच हो सकते हैं. 122(1)A में उस पर्सन को मेंशन किया गया है जो कि ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है ही नहीं, वो टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आता ही नहीं है. जिस आदमी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है, ये वो आदमी ही नहीं है. ये वो आदमी है जिसको गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ये दैट पर्सन हैज बीन इन्वॉल्व्ड, दैट पर्सन हैज बीन अबेटिंग द ट्रांजैक्शन, that person has been getting some direct indirect benefits out of the transactions. That person can also be liable to have his properties attached even though he was not directly involved in sale purchase, he was not the registered person, he was not the person against whom the inquiry or any kind of proceeding has been initiated. तो ये बात को मैं specifically underline करना चाहता हूँ कि जो 83 का provision है, it travels beyond the persons who are directly having any kind of facing any kind of proceedings from the department, but these are the people who have been abetting those transactions, who have been
kind of backing those transactions and who have been getting some direct or indirect benefits, उनकी प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया जा सकता है. एंड इस केस में रीजंस टू बिलीव इन रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है. Every such provisional attachment shall cease to have effect after the expiry of a period of 1 year from the date of the order made under subsection 1. तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक एग्जिस्ट कर सकता है अटैचमेंट. उसके बियॉन्ड अटैचमेंट के प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है 83 जो प्रोविजनल अटैचमेंट की बात करता है टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू. अच्छी बात ये है कि ये अथॉरिटी कमिश्नर से नीचे के लेवल के पास नहीं है. बुरी बात यह है कि इसमें रीजंस टू बिलीव रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है. और मोस्ट इंपोर्टेंटली इसमें सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल पर्सन ही इन्वॉल्व नहीं है, उसके बियॉन्ड भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. इसी से रिलेटेड रूल है 159, where the commissioner decides to attach any property including bank account in accordance with the provisions of section 83, he shall pass an order in form GST DRC 22 to that effect, mentioning therein the details of property which is attached. Second subsection इसका 2 है, sub rule 2 है, the commissioner shall send a copy of the order of attachment to the concerned revenue authority or transport authority or any such authority to place encumbrance on the said movable or immovable property, which shall be removed only on the written instructions from the commissioner to that effect. तो जो भी respective department है, मान लीजिए आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, कोई और प्रॉपर्टी है, तो जो भी जैसे कोई गाड़ी है, तो जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के पास एक नोटिस जाएगा प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए, और वो नोटिस तब तक इफेक्टिव रहेगा जब तक कि कमिश्नर उसको विड्रॉ या रिमूव करने के लिए राइटिंग में इंस्ट्रक्शंस नहीं दे देता. Where the property attached is of perishable or hazardous nature, and if the taxable person pays an amount equivalent to the market price of such property or the amount that is or may become payable by the taxable person, whichever is lower, then such property shall be released forthwith by an order in form GST DRC 23 on proof of the payment. तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हैजर्डस गुड्स हैं और आप टैक्स का अमाउंट जो भी बनता है वो पे करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे केस में ये टैक्स पेमेंट के बाद में आपकी गुड्स जो हैं वो रिलीज हो सकती हैं. Where the taxable person fails to pay the amount referred to in sub rule 3 in respect to the said property of perishable or hazardous nature, the commissioner may dispose of such property. तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर कोई खराब होने वाली चीज है तो और उसको आप छुड़वा भी नहीं रहे हैं, तो उस केस में कमिश्नर उसको बेच सकता है. Any person whose property is attached may within 7 days of the attachment under sub rule 1 file an objection to the effect that the property attached was or is not liable to attachment, and the commissioner may, after affording an opportunity of being heard to the person filing the objection, release the said property by an order in DRC 23. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए कि जहां कहीं भी ऐसा लगता है कि अटैचमेंट अननेसेसरी था, नॉट रिक्वायर्ड था, तो आप अपना एक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं. आप अगर अपना ऑब्जेक्शन फाइल करके कमिश्नर को कन्विंस करने की पोजीशन में हैं, तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट वो अटैचमेंट प्रोसीडिंग ड्रॉप हो सकती है और अटैचमेंट रद्द हो सकता है. The commissioner may, upon being satisfied that the property was or is no longer liable for attachment, release such property by issuing an order in form GST DRC 23. I think ये फॉर्म गलत लिखा हुआ है क्योंकि 23 में एप्लीकेशन जाती है और मे बी 24 में इसके रिलीज ऑर्डर आते हैं जो कमिश्नर की तरफ से दिए जाते हैं. So with this, I think we come to an end as far as the presentation is concerned. But we have many issues to discuss and many question answers to take up. So with the permission of the House, I will take up certain issues or questions that were initially raised by Atul ji. So Atul ji, अगर आप present हैं तो सर आपकी permission से मैं जो issues आपने initially raise किए थे उन पे अपनी बात रखना चाहता हूँ. अतुल जी जी मनोज जी, इट वाज रियली ए वेरी वंडरफुल डेलिब्रेशन. और मैं समझता हूं कि जितने हमारे मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स हैं इस प्रोग्राम में रहे हैं, उनको सबको जो स्पेशली सर्च, सीजर और इंस्पेक्शन पर जो भी इंसाइट है वो सारे मिले होंगे. इसमें मेरी सारे मेंबर्स से रिक्वेस्ट ये है, बिकॉज ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जो हमारे लिए कभी शुरुआत है, अभी तक हम लोग सिर्फ कंप्लायंस वर्क में इन्वॉल्व थे,
और कंप्लायंस वर्क में इन्वॉल्व होने की वजह से हमने कभी भी इंस्पेक्शन, सर्च और इन सब्जेक्ट्स पर कभी बात नहीं की। और आज जब ये सारी चीजें और जो प्रोविजन की ऑफिसर कब इंस्पेक्शन कर सकता है, उसको क्या पावर है, उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सर्च का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, बहुत टेक्निकल चीजें हमने आज शायद समझी हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये सारी चीजें हम लोग एक माइंड में लेकर के चलें कि भाई इनको हमें ध्यान में रखना है और क्लाइंट को भी आगे हमको इस चीज के लिए गाइड करना है, तो जिस तरीके की लिटिगेशंस आज आ रही हैं वो लिटिगेशन शायद धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और मैंने कई बार ये महसूस भी किया है कि डिपार्टमेंट आपके यहाँ सर्च पर आ गया, सर्वे पर आ गया, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, या जैसे कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा था कि देयर आर केसेस जहां हमने रिपोर्ट किए हैं कि डिपार्टमेंट ने सर्वे किया, डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन किया, ऑल इंफॉर्मेशन वर अवेलेबल एट द डिपार्टमेंट, बट डिपार्टमेंट वाज एडमेंट फॉर डिपॉजिटिंग सर्टेन अमाउंट, and in the absence of depositing that certain amount, department was like they were trying to harass the client. So to avoid the harassment, client has deposited that amount and after that department कहता है साहब आप इसको जमा करा दीजिए, अपील में छुड़ा लेंगे। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए हमारे को सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मनोज जी, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन और है इसमें, मेरे वैसे तो आपने दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस ऑलरेडी कर लिया है। एक मेरा क्वेश्चन और है कि ये देखा गया स्पेशली इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर, मनोज जी आई थिंक टेक्निकली कुछ ग्लिचेस रहे हैं और मनोज जी लॉग आउट कर गए हैं, बट अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स जो भी मनोज जी री लॉग इन कर रहे हैं, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को आप अगर क्वेश्चंस को रेज करेंगे तो आई थिंक वी वुड बी इन ए पोजीशन टू गेट द आंसर फ्रॉम द स्पीकर एंड whatever the doubts or issues are there, we would be in a position to solve these doubts. तो मनोज जी आ गए वापस। मनोज जी, मेरा एक क्वेरी और है। हाँ मनोज जी, मेरी एक क्वेरी और है, स्पेशली एम आई ऑडिबल मनोज जी? सर सॉरी, मैं बीच में 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो आपको अपनी बात एक बार दोबारा। हाँ, मैं वापस से क्वेरी आपसे पूछ लेता हूँ सर। जो एक्सपोर्टर हमारे हैं या जो हमारे कई बार क्या होता है कि कंपनी इज इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में होती है या कहीं हमारी कंसाइनमेंट शिपमेंट हमारी जा रही है और हमारी कंसाइनमेंट जो है पोर्ट से जानी है, तो कई बार ये देखा गया है कि मेरे मटेरियल पैकिंग लिस्ट के साथ एक इनवॉइस हमें जनरेट करना पड़ता है फॉर बिल ऑफ लेडिंग, और वो हमें कस्टम भेजना पड़ता है, और वहां से परमिशन आते आते 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और फिर मेरा ट्रांसपोर्ट माल गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद होता है। उस केस में जो मेरा ईवे बिल है, ईवे बिल मेरा बनता है जिस दिन मेरा ट्रांसपोर्ट या ट्रक मेरा या मेरी कंसाइनमेंट फैक्ट्री से निकल रही है, बट इनवॉइस मेरी 2 दिन पहले की है और 3 दिन पहले की है। तो उस टाइम पर जब गुड्स की मूवमेंट होती है तो रास्ते में जो चेक पोस्ट है उसमें चेक पोस्ट उन व्हीकल्स को डिटेन कर लेते हैं ऑन द ग्राउंड कि आपका जो इनवॉइस का डेट है वो 3 दिन पुराना है या 4 दिन पुराना है। तो उसके लिए क्या हमारे पास मिटिगेशन फैक्टर्स होना चाहिए? तो सर मैं पहले आपके इसी सवाल से शुरुआत करता हूं और बाकी के क्वेश्चंस जो आपने इन द बिगिनिंग ऑफ सेशन रखे थे उन पे मैं उसके बाद आता हूं जी। तो सर सबसे पहला तो ये है कि इनवॉइस आपके रेज करने के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई है, जिसके इनवॉइसिंग के रूल्स हैं, वो क्या कहते हैं कि इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स आपको इनवॉइस बनाना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रेमिसेस। तो आपने गुड्स का रिमूवल होने से 10 दिन पहले भी अगर इनवॉइस बना दिया है तो वो वेल विद इन द लॉ है। अब उसके बाद ईवे बिल उसी डेट पे बनना है जिस दिन इनवॉइस बना है, या ईवे बिल उसके बाद 4 दिन बाद बनना है, लॉ हैज नो रेस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लीगल प्रोविजन है वो तो ये है कि इनवॉइस की डेट और ईवे बिल की डेट आपस में डिफरेंट हो सकती हैं फॉर मल्टीपल रीजंस, एंड द पर्सन कंसर्न्ड और द ऑफिसर कंसर्न्ड हैज नो राइट टू पॉइंट आउट कि ये गुड्स जो हैं वो आपके ईवे बिल का डेट अलग है और इनवॉइस का डेट अलग है, क्योंकि लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है जो ये कहे कि जिस दिन इनवॉइस बनी है उसी दिन ईवे बिल होना चाहिए।
इट कुड बी द अदर वे अराउंड। ई-वे बिल अगर पुराना है और इनवॉइस नया है तो वो लॉ के अगेंस्ट है और वो मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिकली कर नहीं पाएंगे। तो पहला तो जो लीगल जवाब है वो तो ये सर कि आपका इनवॉइस 10 दिन पुराना भी हो और ई-वे बिल 10 दिन बाद बन रहा हो, it does not affect any of the legal provisions. So we have to make that officer or person concerned aware about the legal provisions. Number 2, अगर मान लीजिए इसको प्रैक्टिकली रिजॉल्व करना है कि हम इस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहते, तो मैंने, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के साथ डील करता हूं, तो ये समस्या हमारे साथ भी आती थी। फिर बाद में हमें पता चला कि जो परमिशन लेने के लिए इनवॉइस बनाई जाती है, उस इनवॉइस को सिर्फ वो एक तरीके की ड्राफ्ट इनवॉइस होती है। आप उसमें, हाँ, वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस होती है। तो आप जो परमिशन लेना चाहते हैं, जो भी आप शिपिंग बिल बनाने के लिए, बिल ऑफ लेडिंग के लिए, वो आप एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस के बेसिस पे ले लें और सेम कंटेंट्स के साथ आप एक करंट डेट का इनवॉइस अगर बना देंगे तो उससे मेरी बुक्स में भी कोई गलती नहीं होगी। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि आपने अगर ओरिजिनल इनवॉइस बना के उसके बेसिस पे परमिशन लिया और एक्चुअल में वो माल 10 दिन 15 दिन बाद जाता है, तो उससे मुझे फाइनेंशियली भी बहुत लॉस होता है। क्योंकि मेरा, मान लीजिए कि 25 जुलाई को मेरा एक इनवॉइस आपने बना दिया, जो माल 10 अगस्त को गया, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी तो जुलाई में ही आ गई। एक्चुअल में मेरी लायबिलिटी अगस्त में आनी चाहिए थी, जो मैं 20 सितंबर को पे करूंगा, बट क्योंकि मैंने इनवॉइस 25 जुलाई को ही बना दिया है, तो अब मेरी रिटर्न में वो जुलाई की रिटर्न में जाएगा और 20 अगस्त को मैं टैक्स पे करूंगा उसका। और रिफंड मुझे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक मेरा शिपिंग बिल मेरे पास आ नहीं जाता है कंफर्म होके, उसका ईजीएम फाइल नहीं हो जाता, तब तक मुझे उसका रिफंड नहीं मिलता। तो प्रैक्टिकल मेरा सजेशन ये है कि आपको इस केस में इनवॉइस बनानी ही नहीं चाहिए, आपको प्रोफॉर्मा इनवॉइस के बेसिस पे ही अप्रूवल ले लेना चाहिए। और लीगल ये है कि इसमें कुछ गलत है ही नहीं। अगर आप ऐसा मजबूरी में करते हैं तो आप कंटेस्ट कर सकते हैं इस बात को, देयर इज नो चैलेंज ऑन दिस। तो सर, अभी जैसे कि मेरा वो दूसरा क्वेश्चन था रिलेटेड टू जो सर्वे में, जैसे मैंने बोला कि डिपॉजिट प्रेशराइज करके एसएससी से डिपॉजिट करा लिया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि आप जो है सर्वे रिपोर्ट क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आप रिफंड क्लेम कर लीजिएगा। तो उसका क्या रेमेडी है सर, किस तरीके से उससे बचा जा सकता है? सर देखिए, डिपार्टमेंट के अपने इंटरनल सर्कुलर्स, और अब तो इनफैक्ट एक सर्कुलर बहुत ही स्पेसिफिकली आया है जिसमें कोर्ट्स ने भी बहुत फटकार लगाई है इसी पॉइंट को लेके डिपार्टमेंट को, कि किसी भी टाइप का कोएर्सिव एक्शन ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता। वो लोग किसी भी तरह से क्लाइंट को प्रेशराइज करके उस टाइम पे अमाउंट जमा करा ही नहीं सकते। तो वो सिर्फ आपको बता सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि आपने ये इतना इनपुट गलत लिया है, आपके आउटपुट सप्लाई पे टैक्स कम जमा हुआ है, आपने रेट ऑफ टैक्स गलत लगाया है, और उसका जो भी एविडेंस है, जो मटेरियल है, वो सब आपसे गैदर करके ले जा सकते हैं, आपसे एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन एन ऑफिसर कैन परस्यू यू टू डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ टैक्स। ये हमें अपने सारे क्लाइंट्स को, जो भी लोग कभी ना कभी इस सिचुएशन में फंसते हैं, उनको हमें बहुत क्लियरली एजुकेट करना है कि वो डरा धमका के डिपार्टमेंट ये सब काम करता है, और जिसके यहाँ रेड हुई होती है, जो एसएससी उस टाइम पे प्रेशर में होता है, उसको लगता है कि किसी तरह से जान छुड़ाई जाए। तो हम इनकम टैक्स में भी ये चीजें अक्सर देखते थे, यहाँ पे भी वही सीन है कि बहुत सारे लोग उस टाइम पे अनड्यू प्रेशर में आके पैसा जमा कर देते हैं। बट नंबर 1, मेरा पर्सनल सजेशन है कि हम अपने सारे एसएससीज को इतना स्ट्रांग बनाएं कि टैक्स अगर जमा होना भी है तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑफिसर्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम होना ही नहीं चाहिए। वो बाद में एक प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ, डिस्कशंस के साथ, और जो भी ड्यू टैक्स अमाउंट बनता है अपने कंसल्टेंट के साथ मिलके वही जमा होना चाहिए। फिर भी अगर मान लीजिए कहीं हो गया, किसी ने ऐसी मजबूरी में कर दिया, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, प्रेशर बहुत था, उसने जमा कर दिया, तो द फर्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट इज टू रिट्रैक्ट। अगर आपको लगता है कि ये टैक्स पेबल ही नहीं था, जबरदस्ती ले गए हैं वो, जिसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं थी, और अपना टारगेट पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट ने ले लिया है, तो माय आंसर विल बी इनिशियली जितना जल्दी हो सके आप अपनी स्टेटमेंट से जो टैक्स, क्योंकि वो जो जमा कराते हैं वो वॉलंटरी में जमा कराते हैं। नॉर्मली वो 73 सबसेक्शन 5 में ही हमेशा पैसे जमा कराते हैं, या 74(5) में भी करा लेते हैं, विच मीन्स कि वो अपने आप को सेफगार्ड कर लेते हैं कि ये तो एसएससी ने खुद जमा कराया, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। अब ऐसे केस में आपके पास एक ही चॉइस बचती है, वॉलंटरी डिपॉजिट को वापस मांगने के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि साहब ये मेरे को अनड्यू इन्फ्लुएंस में, या जो भी रीजंस आप देंगे, जमा कराया गया है,
और ये मेरी लायबिलिटी बनती ही नहीं है, और फिर आपको सेक्शन 54 में जाके उस टैक्स का रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि रिफंड ऑफ अनड्यू टैक्स विच वाज नॉट सपोज्ड टू बी डिपॉजिटेड और विच वाज नॉट लायबल टू बी डिपॉजिटेड, उस टैक्स के लिए आप अपना रिफंड एप्लीकेशन फाइल कीजिए। और ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो रिफंड आपको कभी मिलेगा नहीं, मतलब इन द सेंस कि द ऑफिसर कंसर्न विल नेवर गिव यू दैट रिफंड, बट वो जब रिजेक्ट करेगा तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू फाइल एन अपील अगेंस्ट दैट, और अपीलेट अथॉरिटी के पास जाके आपका केस मेरिट्स पे सुना जा सकता है, जहां पे एक ऑफिसर जिसने खुद आपके यहाँ पे सर्च किया था, उसने खुद आपसे पैसे जमा करवाए थे, वो तो कभी भी आपको रिफंड नहीं देगा। लेकिन ये होगा कि आपके पास एक जुडिशियल मैकेनिज्म हो जाएगा अपने पैसे को ना केवल वापस लेने का, बल्कि अपनी बात को स्ट्रांगली रखने का कि पैसा गलत तरीके से जमा कराया। ओके सर, सो सर मेरे क्वेश्चन से पहले सीमा सिंगल जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, तो मैंने उनको इन कर लिया है। आई रिक्वेस्ट सीमा जी टू काइंडली रेज योर क्वेरी। सीमा सिंगल जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? सीमा मैडम शायद अभी भी म्यूट पे हैं। हाँ, So now it is okay? या प्लीज। So my view was that ki invoice detail is given to update shipping bill. If we will give any pro forma invoice, then it is really difficult to update shipping bill on the basis of that PI. And if I see in for last 4 years, I never found any difficulty if I have made invoice before the date of shipping bill. My goods were never been, I think, detained by check post or anywhere. Seema ji, you are absolutely right. But what has happened in the past couple of months, we have seen the cases where the exporters are facing the challenges, like the exporters are sending their goods maybe for shipping from Nhava Sheva port or maybe from any other port, not from Delhi itself, and the goods have been detained maybe at Agra check post or maybe at some other check post. So that was the reason. सर ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि गुड्स को रोका गया है, क्योंकि इनवॉइस का डेट 10 दिन पुराना भी हो सकता है, 15 दिन पुराना भी हो सकता है, बिकॉज वो डिटेल आपका शिपिंग बिल पे और सभी डॉक्यूमेंट्स पे अपडेट किया जाता है। हाँ, एग्रीड, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, और वो मनोज जी ने भी बताया कि रोक नहीं सकते, बट प्रैक्टिकली। लेकिन जो बात हमने परफॉर्मा इनवॉइस की अभी सर बोला कि हमें परफॉर्मा इनवॉइस के बेसिस पे हम इस काम को कर सकते हैं, लेकिन सर हमें उसमें एक्चुअल इनवॉइस का डिटेल देना होता है। मतलब आपका कहना ये शिपिंग बिल में हमको एक्चुअल इनवॉइस का डिटेल देना होता है? यस सर, आप शिपिंग बिल आप चेक करेंगे तो उसमें एक्चुअल शिपिंग इनवॉइस का डिटेल दिया जाता है। ओके, परफॉर्मा इनवॉइस का डिटेल नहीं दिया जाता। ओके ओके ओके, सो एम आई करेक्ट मनोज सर? नहीं सीमा जी, हम इस पॉइंट को ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे, बट ये मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है। हम लोग अपने सारे लगभग क्लाइंट्स के साथ परफॉर्मा इनवॉइस के बेसिस पे ही शिपिंग बिल को अपडेट कराते हैं, बट आई थिंक दैट्स मोर एक्चुअल इनवॉइस। फिर सर एक्चुअल इनवॉइस का डिटेल किस तरह से अपडेट किया जाता है? नहीं मैम, आपका इनवॉइस का डिटेल बिल्कुल सेम ही होता है, सिर्फ डेट उसमें वो होती है जिस दिन आप एक्चुअली गुड्स अपने यहाँ से मूव करते हैं, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट उसके सेम होते हैं। दी ओनली थिंग इज कि उस दिन आप प्रैक्टिकली जीएसटी इनवॉइस इशू नहीं करते हैं। तो जीएसटी इनवॉइस आप उसी दिन इशू करते हैं जब आप गुड्स को अपनी फैक्ट्री से मूव कराते हैं। सर हमारे केस में जैसे हमारा इनवॉइस पुराना भी होता है, 2 दिन या 3 दिन, जब भी हमसे इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, whenever CHA is asking invoice detail, तो हम हमेशा उसको एक्चुअल इनवॉइस का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोफार्मा इनवॉइस का नहीं। बट मैंने देखा है आज तक जब भी हमारा शिपिंग बिल हो सकता है 10 दिन बाद का है या इनवॉइस 5 दिन पहले का है, इनवॉइसेस गुड्स को लेके कभी हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करना हुआ कि किसी भी जगह गुड्स को रोका गया है इसके बेसिस पे, एक्सेप्ट अगर हमारा ई-वे बिल में इशू आता है, सपोज ई-वे बिल एक्सपायर हो जाता है, उस केस में गुड्स को रोका जाता है। मैं यही कहूंगा सीमा जी, आप और आपकी कंपनी लकी हैं जो ये चैलेंज फेस नहीं किया। प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन मैंने रेज किया था, वन ऑफ एक्सपोर्टर has faced this challenge and his goods were detained in Agra and he was forced to deposit 40 lakh rupees for movement of goods from Agra check post to the shipment, and now he is contesting that matter into the appeal.
So that's what this question was raised, and even while we discussed with the officer that you cannot detain the goods at checkpost because shipping this final invoice was generated for the purpose of shipping document, and this e-way bill is having the date of removal of goods from the factory. So anyhow, that matter is under litigation. So I thought let me discuss with Manojji also, and I am sure whatever you are saying is also absolutely correct, and Manojji was also supporting the same, that legally you are absolutely correct. There is no hassle into that. But yes, what all modalities may be there, I believe we may discuss with Manojji offline. कि भाई अगर हमने परफॉर्मा इनवॉइस से शिपिंग बिल बनाया तो हम उसको फाइनल इनवॉइस से कैसे सेट ऑफ करेंगे, that definitely we are going to discuss with Manoj ji later on, and I believe I should connect with you also, so that we would be in a better position to understand like what exactly the industries are doing and how the industries are facing the challenges. Both the things can be discussed and can find out a solution as a professional. And उसमें मैं समझता हूँ कि मनोज जी जैसे हमारे जो learned speaker हैं, they would be also in a position to contribute their views, so that जो members और जो उनके clients हैं वो उस तरीके के challenges को face ना करें. Really thank you very much for your input सीमा जी. And मनोज जी, एक question मेरा वापस से हम आ गए input tax credit पर, जो मैंने शुरू में भी पूछा था कि कई बार आपको याद हो शुरू में cases ऐसे हुए कि जिसमें input आपने claim कर लिया, पहले 3B में reflect नहीं हो रहा था या पहले ट्रांस 1 में नहीं आ रहा था, उसके बाद उसके रिवर्सल बाद में मान लीजिए उसका रिफ्लेक्शन 1 साल बाद दिखाई दिया तो आपने 1 साल बाद रिवर्सल किया. तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज इनपुट क्रेडिट अवेल्ड एंड अनदर इज यूटिलाइज्ड, राइट? So if I am correct, in service tax there was a provision, and the provision was input tax credit availed and utilized. Then only there was a penalty and there was an interest. In a present case, the word "and" has been replaced by "or," and Act law says that input credit availed or utilized, in any case you are going to pay an interest or a liability. While we read section 50 and all relevant sections for the purpose of utilization of input, plain reading of section says that input credit availed means if that availment of input credit is affecting your output liability in any manner, then it will be considered as input credit availed. And I believe, as I quoted in the opening remark also, that there is a judgment of Patna High Court where they said that if there is no output liability got affected because of this input credit, then you are not liable to pay the interest and penalty as well under section 122 subsection 2 clause A. So what is your opinion into this matter? Yes sir. So सर एक चीज हमें सबसे पहले ये समझनी पड़ेगी कि जो सर्विस टैक्स में जितने भी बैक एंड रूल्स थे वो सारे रूल्स कहीं ना कहीं एक्साइज लॉ से बैक होते थे. तो मोस्टली बहुत सारे एक्साइज के प्रोविजंस ऐसे थे जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोपिंग किया गया था सर्विस टैक्स के रूल्स के साथ. तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि वहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ करता था इस बात में कि आपने गलती से इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है या आपने उसको यूटिलाइज भी कर लिया है. बेसिकली अवेल करने और यूटिलाइज करने में जो डिफरेंस है वो हम सब समझते हैं कि अगर आपने उसको एक पर्टिकुलर इनपुट को अपनी आउटपुट लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए यूज कर लिया है तो देन इट विल ऑलवेज अमाउंट टू लॉस टू द एक्सचेकर, कि आपने एक ऐसा अमाउंट डिस्चार्ज कर दिया है जो कि आपका कभी था ही नहीं. तो उसके ऊपर लेजिटिमेटली आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी बनती है. अगर हम देखें जीएसटी लॉ को तो जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू से आ रही थी वो ये आ रही थी कि आपका जो पॉइंट है उसको मैं बाद में आंसर करूंगा, उससे पहले हम थोड़ा सा प्रियम्बल सेट करते हैं. तो सबसे पहले हम सब ने देखा कि बहुत बड़ी लिटिगेशन इस बात पे आ रही थी कि सेक्शन 50 का जो ओरिजिनल प्रोविजन है वो ये कहता था कि अगर मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए का इनपुट पड़ा हुआ है और आपको 55 लाख रुपए का टैक्स जमा कराना है, किसी रीजन से आपके पास 5 लाख रुपए कैश में देने के लिए नहीं है और आपने 1 महीना 2 महीने लेट कर दिया टैक्स जमा कराना, तो इफेक्टिवली क्या होगा कि 5 लाख रुपए ना होने की वजह से आपको पूरे 55 लाख रुपए पे लायबिलिटी आ जाती थी, बावजूद इसके कि उसमें से 50 लाख रुपए तो आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं. और इनपुट टैक्स लेजर में लेजिटिमेट इनपुट पड़े होने का क्या मतलब है कि किसी ना किसी आदमी ने उसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी जमा करा दिया है, जिसने आपको लेजिटिमेट इनपुट टैक्स पास ऑन किया है जो आपने अपने आईटीसी में क्लेम किया है.
उसके ऊपर आपके सप्लायर ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स जमा करा दिया होगा। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द वैल्यू एडेड टैक्स। तो बहुत टाइम के बाद ये कंट्रोवर्सी सॉर्ट आउट हुई और हम सब ने देखा कि रेट्रोस्पेक्टिवली अभी अमेंडमेंट आया कि अगर आपकी लायबिलिटी सेट ऑफ करने में कैश का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो उस केस में आप अगर लेट भी टैक्स जमा करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे हमारे क्लाइंट ऐसे हैं जो मार्च की रिटर्न को डेलिबरेटली डिले करते रहते हैं। उनके पास सफिशिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, लेकिन वो इसलिए डिले करते हैं कि बहुत सारे बिल लेट आते हैं, बहुत सारी उनकी अकाउंटिंग में इश्यूज आते हैं, बड़े क्लाइंट्स हैं तो उनके यहाँ पे टाइमली क्लोजर नहीं होता बुक्स का। तो वो ये चाहते हैं कि हम ऐसे कोई आईटीसी आगे कैरी फॉरवर्ड करके नहीं ले जाएंगे, हम इसको मार्च में ही क्लोज करेंगे। तो 20 अप्रैल तक रिटर्न फाइल करने की बजाय वो रिटर्न को 2 महीने लेट कर देते हैं। सो सेम प्रेमाइस होता है कि मेरे पास एनफ आईटीसी है, अगर मैं 2 महीने बाद भी जमा करूंगा तो मेरे को कोई इंटरेस्ट एडिशनली पे नहीं करना। तो ये एक बेसिक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी डे 1 से, जिसको कि सेट असाइड कर दिया। अब रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई से ये लॉ आ गया है कि अगर आपने कैश में कोई अमाउंट डिस्चार्ज नहीं किया है, सिर्फ आईटीसी यूज करते हुए डिस्चार्ज किया है, तो उस डिलेड डिपॉजिट के ऊपर आपको कोई एडिशनल इंटरेस्ट पे नहीं करना है। अब जो आपका पॉइंट है सर, उसके 2 पहलू हैं। पहला ये कि आपने एक ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी बुक्स में ले लिया है जो कि आपका था ही नहीं, ये आपका एलिजिबल क्रेडिट नहीं था। अभी जो हमने बात की वो अलग थी, वो ये था कि एलिजिबल क्रेडिट था लेकिन आपने आउटपुट में उसको टाइम से डिस्चार्ज नहीं किया, जिसको कि सेट असाइड कर दिया है कि वो वाला टैक्स अब आपको उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करना है। अब आते हैं कि आपने एक इलेजिटिमेट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, वो बोनाफाइडी भी हो सकता है, मेलाफाइडी भी हो सकता है। नाउ यू कैनॉट जस्टिफाई दिस एक्ट बाय ऑल मींस कि मैंने जो लिया वो हमेशा बोनाफाइडी था, हालांकि वो गलत इनपुट था। गलत इनपुट कैसे ले सकते हैं आप? इनएलिजिबल 17(5) का कोई इनपुट ले लिया आपने, कोई ऐसा इनपुट ले लिया कि आपकी आउटपुट सप्लाई एग्जेम्प्ट है और आपने फिर भी उस इनपुट को क्लेम कर लिया। आपके पास कोई ऐसा बिल आ गया जिसमें सप्लायर ने टैक्स जमा ही नहीं करा रखा, फ्रॉडुलेंट बिल है, आपने उसके ऊपर इनपुट ले लिया। तो ये सारे वो इनपुट हैं जो आपने अपने 3B में क्लेम कर लिए, लेकिन समहाउ आपके पास इतना सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ था ऑलरेडी इनपुट टैक्स में कि वो यूटिलाइज नहीं हुआ, आपने आउटपुट के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ ही नहीं किया। अब आपका पॉइंट ये आता है कि अगर मैंने सेट ऑफ नहीं किया और मुझे रिवर्सल करना पड़ रहा है उसको किसी रीजन से, रिवर्सल क्यों करना पड़ रहा है? कि मैंने गलत ले लिया था, या मेरे पास एलिजिबल ही नहीं था, 17(5) का ब्लॉकेज था, या और भी कोई रीजन है। रिवर्सल के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, इंक्लूडिंग रूल 36(4) भी हो सकता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये लॉ में चेंज क्यों किया गया? इसके पीछे की जो डिपार्टमेंट की मंशा है वो ये है कि पुराने लॉ में भी ऐसा बहुत बार होता था कि किसी आदमी ने इल इंटेंशन से एक इनपुट ले लिया। अब आप एक बात को समझिए कि मैंने आज एक इनपुट ले लिया और मैं उसको यूज नहीं कर रहा, अब मैं 5 साल के बाद में उस इनपुट को यूज करता हूं, तो टेक्निकली स्पीकिंग क्या होगा सर? 5 साल पुराना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कराने के लिए डिपार्टमेंट के पास शो कोज नोटिस इशू करने का कोई राइट ही नहीं। हम टाइम लिमिटेशन पीरियड है, अगर मान लीजिए वो 5 साल के अंदर अंदर डिपार्टमेंट आ गया और उसने मेरा अमाउंट रिवर्स करा दिया, तो मैं कहूंगा साहब ये तो गलती से ले लिया था, मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, इस पर क्या आएगा ब्याज। तो क्या हुआ? आपने एक ऐसी आइटम की चोरी कर ली अपने पड़ोसी के घर से कि जब पड़ोसी पूछने आएगा तो मैं कहूंगा वो तो गलती से आ गई थी, तो वापस ले जाओ। अगर पड़ोसी पूछने नहीं आया तो चीज मेरी हो गई। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। इसमें जो फाइन लाइन डिफरेंस है ना सर, वो ये है कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में ये अलाउ कर देंगे कि आप कोई भी मिसलीडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए, आपके पास जस्टिफाइड रीजंस नहीं है उसको क्लेम करने के, आपने फिर भी जबरदस्ती ले लिया और आपने जानबूझ के उसको यूज नहीं किया, ये मानते हुए कि साहब इसको टाइम बाउंड है, ये तो 5 साल के बाद तो डिपार्टमेंट हाथ ही नहीं लगा सकता, फिर तो वो पूछ भी नहीं पाएगा कि ये तुमने क्यों लिया था, और मैं इसको 5 साल के बाद अवेल कर लूंगा। So that is why there is a catch-22 situation. You are absolutely right in saying कि maximum cases ऐसे होते हैं जहां पे ये मेलाफाइडी नहीं होता है, बोनाफाइडी होता है। 1000 रुपए का टैक्स लग के आया था एक बिल पे, मैंने गलती से उसको 10,000 रुपए क्लेम कर लिया और डिपार्टमेंट ने फाइंड आउट किया कि 9,000 आपने एक्सेस क्लेम कर लिए हैं। अब एक तरीका तो ये है कि हम सिंपली डिपार्टमेंट को ये कहेंगे अच्छा जी गलती हो गई, हम इसको 9,000 रिवर्स करते हैं, ब्याज किस बात का। दूसरा ये डिपार्टमेंट विल से कि नो, हाउ विल यू प्रूव दैट दिस वाज अ बोना फाइडी, व्हाई वाज इट नॉट अ मेला फाइडी? सो इफ इट वाज अ मेला फाइड इंटेंशन देन ऑब्वियसली यू आर लायबल टू पे सम पेनल इंटरेस्ट ऑन दैट, बिकॉज अल्टीमेटली अगर वो उनकी नजरों से निकल जाता तो आप यूज कर लेते उसको। और यूटिलाइजेशन के लिए भी हो सकता है कि आपने जानबूझ के उसको रोक के रख लिया हो और कैश में जमा कराते रहे हो कि भाई ये तो बाद में काम आएगा। सो सर, टू कट दिस स्टोरी शॉर्ट,
what you're saying is absolutely right, that in bona fide cases, reversal of an input tax credit which was never used to pay the output liabilities, if we are asking for interest even on that amount, is a little bit of a harsh on the SSC. But at the same time, today's law is such that yes, you have to reverse along with the payment of interest only. But then then there is always a judiciary which will take a judicious view whenever they find कि आपके आर्गुमेंट में मेरिट है कि आपसे गलती हो गई थी, there was no ill intention, आप करोड़ों रुपए का इनपुट लेते हो, बिल्कुल सही लेते हो, आपसे एक जगह गलती हो गई, आपसे रिवर्सल कराया जा रहा है, तो ब्याज नहीं लगना चाहिए. So my answer to this is, sir, लॉ का इंटरप्रिटेशन मेरे ख्याल से यही है कि आप अगर ऐसा रिवर्सल करते हैं तो वो आपका सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट है. But yes, then the rationale of the judiciary at occasions, जैसे पटना हाईकोर्ट का आपने एग्जांपल दिया, वो बहुत जगह पे ऐसा हो सकता है जहां फैक्ट्स ऑफ द मैटर्स के बेसिस पे ये डिसीजन हो जाए कि यहाँ एक बोनाफाइड केस था और इसलिए एसएससी को ये रिलीफ दिया गया है. ऐसा मेरा व्यू है. सर, मेरा जो सवाल था वो उसी केस में था जहां एसएससी ने सुओ मोटो रिवर्सल कर दिया. एसएससी को पता लगा कि he has taken this claim wrongly. Basically, if you remember, while this GST was implemented from 1st July onwards, so Trans 1 was not properly working. कभी Trans 1 में इनपुट आ रहा था, कभी इनपुट नहीं आ रहा था. तो just to see, like the SSC ने देखा कि भी Trans 1 में मेरा क्रेडिट अपीयर नहीं हो रहा. So what they did, like they took the credit through 3B. उन्होंने उसको 3B के थ्रू इनपुट लेना शुरू किया और उसके बाद वो Trans 1 में रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ after 6 months or maybe after a year or maybe after 3 months. So the moment they found the credit available into the Trans 1, then they reversed whatever credit they have availed in 3B. So in such cases also, department has issued the show cause notices and the department is asking for the penalty and interest thereon. So my submission is, because the SSC has reversed the input credit suo moto, so intention of the SSC is proved that the intention is bona fide. Intention is not mala fide. So in such case, in my opinion, there must be certain circular or a notification within the department that if it is proved that the intention of the SSC is bona fide, and in such case, the provision of this section should not be applied. This is just what my suggestion is. And I believe, like, because you always have a interaction with the GST Council people also. So on our behalf, like, if you can give this kind of suggestion, and if the government may come up with some circulars, because if you remember, I'm not saying that there must be a change in the law, but there are certain internal circulars, internal guidelines where these guidelines are binding on the officers. So in that case, there may be a big relief to the SSC. Otherwise, a lot of litigations are pending, and the purpose of GST, with whatever the purpose was there, it is actually not getting solved. But because of these small litigations are going up like anything. So anyways, we have another member, Rajni Mohtaji, with us. I think she's also having, she also has raised her hand. So I request Rajni ji, please raise your query. Rajni ji, are you able to hear us? Hello. Yeah, Rajni ji, please. नहीं, ये गलती से लग गया था, कोई क्वेरी थी नहीं. अच्छा, क्वेरी नहीं थी सर. Sorry. So this was the all my worry was, मनोज जी, जो मैंने आपसे अभी शेयर की. अच्छा, एक इसके अलावा मैंने शायद एक क्वेश्चन और सर, मैं पहले आपके इस पॉइंट को 2 मिनट में कंक्लूड करना चाहता हूँ. जी. पहली बात तो ये सर कि जो इस केस में पेनल्टी, जहां सुओ मोटो रिवर्सल है, वहां पे पेनल्टी का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है. और डेफिनेटली यू आर राइट कि अगर मैंने खुद ही रिवर्स कर दिया है विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ इंटीमेशन और नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी पेनल्टी. द इशू इज ओनली अबाउट इंटरेस्ट. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर मैंने सुओ मोटो अपने आप ही उसको रिवर्स कर दिया है और मैंने उस अमाउंट को कभी यूटिलाइज ही नहीं किया था, कभी उसको पेमेंट के लिए यूज नहीं किया था, तो एक्साइज लॉ और सर्विस टैक्स एग्जैक्टली ये कहते थे कि अगर मैंने कोई इनपुट गलती से लिया या जानबूझ के भी लिया मगर उसको कभी यूज नहीं किया और खुद ही रिवर्स कर दिया डिपार्टमेंट के पॉइंट आउट करने से पहले, तो उस पोर्शन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए. तो आई स्ट्रांगली सेकंड योर व्यू कि इस टाइप का क्लैरिफिकेशन, चाहे वो लॉ में आए या एक पर्टिकुलर इंटरनल गाइडलाइन में डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन हो, कि इस तरह की सिचुएशन में जहां कभी उस अमाउंट को यूज ही नहीं किया गया और सुओ मोटो रिवर्स किया गया, उसके ऊपर ब्याज नहीं लगना चाहिए. आई टोटली एग्री विद दिस.
थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई बिलीव अभी और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। मेरी भी क्वेरीज आपने रिजॉल्व कर ही दी हैं, तो if you allow, then let's conclude the session. Shashi bhai, Shashikant Chandrakar ji, are you there, sir? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, मेरे ख्याल से क्वेरीज हमारी सारी ओवर हो गई हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो बताएं, अदरवाइज लेट्स कंक्लूड द सेशन। Sir, nothing, sir. Nothing from my side, sir. So, sir, I am really thankful to the speaker of the today's session, CA Manoj Kumar Goyal ji, who has addressed all the queries which are very much relevant for each one of us. So, I am really thankful to Manoj ji, and I am thankful to attendees who are present here. Now, for formal vote of thanks, I request C. Shashikant Chandrakar ji for formal vote of thanks. Over to C. Shashikant Chandrakar ji. Thank you, Atul sir, for giving me the opportunity to propose vote of thanks on behalf of CIRC. And really, it was very wonderful session about the search, seizure, penalties, prosecution, arrest, etc. under GST law. And we are at the CIRC level very much thankful to our learned speaker Manoj Kumar Goyal ji for deliberating all the issues and all the queries of our participants. And I am also much thankful to CA Atul Agrawal sir. He is today's moderator also for arranging such a very nice program for the benefit of our members. And last but not the least, I am very much thankful to all the participants who have attended this webinar VCM in the topic of GST. At last and not the least also, I would like to thank our office staff from CIRC Kanpur. So thank you very much all of you for attending today's VCM in GST. Thank you, sir. Thank you, Shashi bhai ji. Thank you to all the attendees. Thank you, sir. Close. Yeah, Close. yeah. Yes, Close, sir. sir.